In the last session, we were talking about indexes first. We talked about indexes, how we can write the regular index, how we can write unique index, how we can write the composite index, and also one concept called as a clustered index. After that, we also talk about the limitations or kind of problems that you will be facing with the indexes, that is your DML speed will be reduced. But still, indexes are very popular because you want to make your searching faster. Then we will continue further. Then we talk about something like constraints. And I told you that there are total 5 types of constraints are there. The first constraint was like a not null constraint. The second constraint was unique constraint. Third one was a primary key constraint. Fourth one was like a foreign key constraint. And the last one was kind of a check constraint. Out of which, I guess we discussed not null constraint क्या we talked about unique constraint क्या we talked about primary key constraint क्या What is the major difference between unique constraint and primary key constraint? That you find that unique key, unique constraint, you can have null value. Primary key, you cannot have null value. Second biggest difference that you find that you can have as many unique constraint as you want. However, you can never have a multiple primary keys. So primary key हमेशा एक ही होता है, that is for fix for each table, right? And then apart from that, then we talk about a foreign key. And the concept of foreign key that I was trying to explain you is that if you have got some table like primary key, that primary key will be referred through another table and another table column that is called as a foreign key. जैसे हम लोग कह रहे थे कि डिपार्टमेंट के अंदर we have got like a department number and that department number will be referred from the employees department number. So employees department number will connect employee table to the department tables DBT. And that is the idea. And what is the biggest advantage that we get with the foreign key constraint? Foreign key में हम लोग रिकॉर्ड तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की उसके पेरेंट टेबल में प्रेजेंट ना हो. दैट वाज द आइडिया. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके पास डिपार्टमेंट नंबर 50 नहीं है तो आप लोग 50 नंबर में कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं कर सकते हो. इफ यू ट्राई टू ऐड इट probably it will give you error there itself. So like a basic idea that we were talking about, and now I said that we can go few more steps ahead. There is something extra that MySQL provide, and there are some specialized concept regarding foreign key that we will talk about. So I'm just continuing further. Digvijay sir, is there any problem while student joining? No, sir. There seems to be some problem. Number of students are limited to 300. Just minute, sir. I will check with Akash, sir. एक्चुअली सर आकाश सर ने शायद सेट नहीं किया हुआ है, उनको कॉल करता हूँ. Give me a minute, guys. Yes, Dhananjay, I'm doing it. हेलो.
येस. तर ते आकाश सर म्हणताय तिकडे संदीप सरांचं पण लेक्चर चालू आहे. मग पुढे तिकडचं सेटिंग काढतो. 1 मिनिट, मला नाही कळालं. त्यांनी जावाच्या राईट, लेक्चर अंडरस्टूड नंतर अंडरस्टूड अंडरस्टूड. थांब जरा. गाईज होल्ड ऑन प्लीज, वेट फॉर अ मिनिट. So let us continue further. Foreign key we are talking about. So foreign key का speciality क्या है and foreign key के advantages क्या है, or you ensure that there is a data integrity. I was using some word, something called as a, शायद मैंने कल लिखा भी था कहीं पर word, I don't know what happened, or I have written some at other places. So that will give you something called as a data integrity. And what do you mean by data integrity? You ensure that your data is a valid data. Your data is a valid data. तो सर वो कैसे? Let me just show you. कल मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, जब तक आपके पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, तब तक आप लोग करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय ऐड नहीं कर सकते हो. जब तक आपके पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, तब तक आप लोग करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय ऐड नहीं कर सकते हो. ऐसा मैंने कहा तो था. लेट्स सी हाउ इट गोज. वो मैंने आपको करके दिखाया था. But there is also reverse things are also there. Like for example, I'm just going ahead. Let me open today's file. कोड शेयरिंग मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो. और टॉपिक जो हमारा चल रहा था लाइक कंस्ट्रेंट्स, and inside constraint what we are talking about is like a foreign key constraint. Foreign का स्पेलिंग गलत हो गया. ओके, फॉरेन की कंस्ट्रेंट. एंड व्हाट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट? ऑलरेडी मैंने इंसर्ट वाला पार्ट कल दिखाया था. आज मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ. लेट्स से दैट कल जो आप लोगों ने डेटा चेक किया था, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DBTS and select star from EMPS. So you have already noted that आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 में एम्प्लॉयज है, लेकिन जो आपके बचे हुए डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर कोई एम्प्लॉयज नहीं है. ये आपने यहाँ पर कल चेक किया था. अब मैं क्या कह रहा हूँ, सीट केयरफुली. I can go there and I can see that delete from DBTS, delete from DBTS, where DBTNO is equal to 10. Now what you are trying to delete? What you are trying to delete? I'm trying to delete the department in which there are already employees. If you try to delete a department in which already employees are there, it will give you again a constant error saying that वो ऐसा parent row है जिसके corresponding multiple child rows are present. कल मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा था कि यहाँ पर ये मेरा parent row है, 10 is a parent row, and corresponding to the parent row there are two child rows. So I cannot delete any such employee. I cannot delete any such employee, any such department जिसके corresponding employees already present हो. I cannot delete any such department जिसके corresponding employees already present हो. So this is again constraint. Constraint in the sense, constraint is word का English meaning है restriction. So I'm saying that this is error. Cannot delete parent row. क्योंकि अगर आप लोग उस रो को डिलीट कर दोगे, देन यू विल से दैट कि आपका यहाँ पर जो आपके रोज है एम्प्लॉय के अंदर के, वो रोज काइंड ऑफ ऑर्फन हो जाएंगे. अगर वो पेरेंट, अगर उसका पेरेंट चला गया तो ऑब्वियसली बेचारे चाइल्ड ऑर्फन हो जाएंगे. सो यू अंडरस्टैंड दैट. आई एम गोइंग अहेड. नॉट ओनली यू कैन डिलीट, प्लीज नोट दैट आप लोग जाके उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हो. अपडेट मतलब क्या? जैसे अपडेट सेट DPTNO is equal to 30, where 30 नहीं, एक काम करता हूँ, I'll make it let's say 60, क्योंकि 30 भी already existing है. So you are trying to set it to 60 जहां पर already आपके पास 10 है, करेक्ट? सो आप लोग 10 को चेंज करके 60 करने की कोशिश कर रहे हो. वापिस से याद रखना, इस 10 के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी आपके चाइल्ड टेबल के अंदर, इस 10 के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी आपके चाइल्ड टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स आर देयर, रिकॉर्ड्स आर देयर. अभी आप लोग क्या कह रहे हो, इसको जाके चेंज करो, इसको 10 निकालो और 10 की जगह पे यू मेक इट 60. नाउ इज इट पॉसिबल? आई सेड दैट लेट अस गो बैक and let us try it whether I can change that. And again it is giving me error saying that you cannot even do the update operation on that. You neither can do the update operation nor can do the delete operation. So cannot update parent rows primary key. Please note, I'm not saying that you cannot update parent key. Parent row आप लोग अपडेट कर सकते हो,
उसका डिपार्टमेंट नेम जो है, अगर आपको डिपार्टमेंट नेम चेंज करना है, डिपार्टमेंट नेम चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस वैल्यू की वजह से वो आपके चाइल्ड रो के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो उसकी वैल्यू, उसका प्राइमरी की, ये प्राइमरी की आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज बट कॉमन सेंस, क्योंकि अगर आपने उसको चेंज कर दिया देन देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन दिस, एंड these records will again become orphan records. तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको अलाउ नहीं करना। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग दूसरे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप लोग दूसरे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज गो अहेड, वी कैन से डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 40। सो अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर 40 को डिलीट कर रहा हूँ, यू कैन गो एंड क्रॉस चेक, डिपार्टमेंट नंबर 40 कैन नॉट बी डिलीटेड। सॉरी सॉरी, मैं कहाँ पर हुआ? आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 40, यस इट कैन बी डिलीटेड, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आप लोग नोट किया, इस 40 के करस्पॉन्डिंग, इस 40 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉई नहीं है। सिंस देर इज नो एम्प्लॉई करस्पॉन्डिंग टू 40, दिस 40 कैन बी स्ट्रेट अवे डिलीटेड और 40 कैन बी एडिटेड, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 40 can be deleted और 40 can be edited, there is no problem at all। अब कुछ लोग, आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोग मेरे साथ करोगे, इट इज रियली एक्सपेक्टेड दैट जहां तक मैंने कल बताया था वहां तक आप लोगों ने किया है, ये मेरा पहला एजम्पशन होता है। सो मेरा पहला एजम्पशन मैं आपको ये दिखा रहा था, कल के मेरे क्वेरीज एक बार जाके चेक कर लो, एंड समथिंग दैट आई हैव शोन यू, शो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स टेबल जो मैंने कल किया था, ये डिपार्टमेंट्स टेबल है, ये वो डीपीटी टेबल नहीं है। ये पहली चीज, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट नंबर जो है ये प्राइमरी की है। तो यहाँ पर देर इज वन कंस्टेंट, प्लीज गो एंड चेक इट, क्या आपका डिपार्टमेंट टेबल, अरे 2 मिनट में जो बता रहा हूँ ठीक से देखो, अमित सारंग शुभम, मैं कुछ वही बता रहा हूँ, कैन यू प्लीज चेक दैट? पहले चेक करो, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका डिलीट हो गया, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव डन रॉन्ग पहले वो चेक करो। सो आपका जो डिपार्टमेंट टेबल है पहले चेक करो, उसके अंदर आपका डिपार्टमेंट नंबर आपका प्राइमरी की है क्या? प्लीज क्रॉस चेक, इज इट प्राइमरी की? नंबर वन। एंड नंबर टू, जो एम्प्लॉय कल मैंने आपको बना के दिखाया था, जो एम्प्लॉय मैंने कल आपको बना के दिखाया था, उसके अंदर मैंने कुछ तो फॉरेन कीज बनाए हुए थे, मैंने कुछ फॉरेन कीज बनाए हुए थे, और मेरे यहाँ पर 2 फॉरेन कीज थे। क्या आप लोगों ने ये फॉरेन की बनाया हुआ है क्या? हैव यू डन दैट? कैन यू प्लीज चेक दैट? अगर आप लोगों ने फॉरेन की बनाया नहीं है, अगर आप लोगों ने वो इंप्लीमेंट नहीं किया है, देन ऑब्वियसली आपको एरर नहीं आएगा। एरर किस बात का आने वाला है? कंस्ट्रेंट का एरर आने वाला है, और कंस्ट्रेंट का एरर आने के लिए पहले आप लोगों ने कंस्ट्रेंट वाला टेबल बनाना चाहिए। अगर आपने कंस्ट्रेंट वाला टेबल बनाया नहीं है तो आपको एरर क्यों आएगा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यू फर्स्ट इंश्योर दैट डिपार्टमेंट के अंदर यू हैव गॉट लाइक अ प्राइमरी की, primary key is equal to dptno, you first ensure that, and second you have got like a foreign key, एटलीस्ट एक फॉरेन की तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डीपीटीएनओ की फॉरेन की आप लोगों ने लगाई हुई है, पहले वो चेक कर लो। अगर सर फॉरेन की है लेकिन सर फिर भी वो डिलीट कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो लेट मी नो, देन इट इज समथिंग समथिंग ट्रबलसम, राइट? अब चला चेक करो, आप सबका रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, सबके रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, वाह क्या बात है। मैंने कहा ना कि आप लोग पहले अपने टेबल चेक करो, कैन यू प्लीज फर्स्ट चेक योर टेबल्स? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर फॉरेन की बनाया होगा, फॉरेन की कंस्टेंट बनाया होगा, तो फॉरेन की का एरर आएगा। अगर फॉरेन की कंस्टेंट ही नहीं है, एरर किस बात का? हाँ। सो जिन लोगों का ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है, जिन लोगों का ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है, इट ओनली मीन्स दैट आपने वापस से पिछले पेज में जाना चाहिए, और वहां पर जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ है पहले वो टेबल बनाना चाहिए। अमित मैंने आपको कुछ बताया, हैव यू चेक दैट? आई फर्स्ट आस्क यू टू चेक द कंस्टेंट, हैव यू चेक फॉर द कंस्टेंट फर्स्ट? नहीं है ना आपके कंस्टेंट, तो पहले जाके कंस्टेंट बनाओ, टेबल डिलीट करो, जो एग्जिस्टिंग टेबल थे वो टेबल ड्रॉप करो, वापिस से एक बार बनाओ, और तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा।
एनीवे आप लोग अगर भूल गए होंगे तो मैं कल का कोड वो कॉपी पेस्ट करता हूँ सो दैट यू डू दैट। नहीं कैसे है क्या, अमित इज नॉट अलोन, वो दो चार लोग हैं उसके साथ में, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो आई एम ऑलवेज होपिंग दैट कि आप लोगों ने मेरे साथ किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, पहले सुन तो लो, सुनोगे नहीं तो फिर मुश्किल है। लेट मी गो एंड फाइंड इट आउट। गिव मी मिनट, गिव मी मिनट, गिव मी मिनट, समथिंग। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो पहले कल पढ़ा था उसको पहले ठीक कर लो। सो डिपार्टमेंट टेबल वाज देयर with primary key, department number was there with primary key, and wait for a minute. Yes, it's like a foreign key part, and this table was there with foreign key, with foreign key. So you first ensure that you people have done these settings correctly, and if you have done these settings correctly, then you don't worry, you will be getting error at these lines. So जिन लोगों को errors नहीं आ रहा है, सर हमको error नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कल के लैब के बाद में, कल के लेक्चर के बाद में शायद वो सारे सेटअप किए नहीं, या फिर कल के लेक्चर में आपने मेरे साथ स्टेप्स किए नहीं है। इफ यू आर नॉट डन इट, प्लीज गो अहेड, डू these स्टेप्स एंड गेट these errors. एज यू गेट this error, देन यू अंडरस्टैंड दैट ये 10 नंबर का जो रिकॉर्ड है ये डिलीट नहीं हो सकता। 10 नंबर का जो रिकॉर्ड है उसका प्राइमरी की, अब लोग प्राइमरी की मॉडिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि करस्पॉन्डिंग चाइल्ड रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय के अंदर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। करेक्ट? नाउ गेटिंग एरर? एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यू गो अहेड, you can always say that delete from departments where department number is equal to 40. Delete from departments where department number is equal to 40. चलो ये भी अच्छी बात है। I'm just going ahead. Hey, this can be deleted. This can be deleted. This is okay because no child row, no child row for department number is equal to 40. There is, in other words, there is no employee in department number 40. Now you can delete that. There is no trouble. I hope now it is clear to everyone. I'm going ahead. लेकिन मुझको कुछ और करना है। मुझको कुछ और क्या करना है? मुझको ये करना है, लिसन केयरफुली, मुझको ये करना है कि जैसे ही मैं 10 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, जैसे ही मैं 10 नंबर का डिपार्टमेंट डिलीट कर दूं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाए। जैसे मैं 20 नंबर का डिपार्टमेंट डिलीट कर दूं, जैसे ही मैं उसको डिलीट कर दूं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर के सारे एम्प्लॉयज भी डिलीट हो जाए। सर ऐसा कोई फीचर है? मोस्ट ऑफ द आरडीबीएमएस में ऐसा कोई फीचर नहीं है, बट गुड थिंग इज दैट MySQL has got that feature. I repeat once again, this is not a generalized feature. This feature is not available in every RDBMS. However, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि yes, this kind of feature is available. So I'm just going ahead and trying to create the table once again. मैं फिर से एक बार दोनों टेबल डिलीट करने वाला हूँ और फिर से एक बार वो टेबल्स को मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ। मैं फिर से एक बार टेबल्स को डिलीट करने वाला हूँ और फिर से एक बार मैं टेबल्स को रिक्रिएट करने वाला हूँ। नाउ व्हेन आई एम रिक्रिएटिंग टेबल, प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्लीज पे अटेंशन। मैं यहाँ पर कुछ तो एक आई एम राइटिंग सम स्पेशल मैसेज, सम स्पेशल मैसेज आई एम राइटिंग दैट ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब ये होता है, ऑन डिलीट कैस्केड का ये मतलब होता है कि जब कभी करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की डिलीट हो जाएगा, फॉरेन की के जितने सारे रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। जब कभी पेरेंट रो डिलीट हो जाएगा, उस पेरेंट के करस्पॉन्डिंग जितने सारे चाइल्ड रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। और वैसे आप लोग चाहो तो एक और भी ट्राई कर सकते हो, ऑन अपडेट कैस्केड। नाउ व्हाट इज ऑन अपडेट कैस्केड? ऑन अपडेट कैस्केड जहां पर आप बता रहे हो कि अगर पेरेंट रो आपका अपडेट हो गया, मतलब पेरेंट रो के अंदर का अगर प्राइमरी की अपडेट हो गया, करस्पॉन्डिंग चाइल्ड रो के अंदर का
प्राइमरी की ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। सो ये भी आप लोग उसको बता रहे हो कि दिस इज पॉसिबल। आप चाहो तो सिर्फ ऑन डिलीट कैस्केड लगा सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ ऑन अपडेट कैस्केड लगा सकते हो, आप चाहो तो दोनों लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग अहेड एंड आई एम सेइंग दैट यही चीज मैं फिर से एक बार कर रहा हूं। मैं टेबल्स वापस से ड्रॉप कर रहा हूं और वापस से ड्रॉप करके सारे टेबल वापस से रिक्रिएट कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड? समथिंग वेंट रॉन्ग। वाज देयर एन एरर? Okay, my mistake. Don't worry. Now you can take care. You can delete first employees and departments. ये आप लोगों ने उन दोनों टेबल को डिलीट कर दिया। Then again you create departments. मैंने departments create कर दिया। And after department let me create all employee मैंने create कर दिया। आप लोग बताओ नहीं, करके देखो एक बार। समीर एक बार पहले करके देखो, बाद में मैं वापस से बताने ही वाला हूँ। आप लोग पहले करके देखो, you will automatically understand the things. So do not listen, do it. As you do it, you should understand it. थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि this is going to give me error, cannot delete, parent row 10 वाला रो आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से एक बार। लेट मी जस्ट शो यू कि पहले यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, DPTS. So I'm able to see all departments there. Okay, that is good. I'm able to see all employees there once again. Yes, that is also good. Employees are also there. Now what I'm saying is that, okay, no problem. I'm just going ahead. What I'm saying is that if you go there and if you try to update a record, see it carefully. I'm trying to update a record with department number 10. ये मेरा डिपार्टमेंट नंबर का 10 का जो रिकॉर्ड था, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो रिकॉर्ड था, मैं उसको अपडेट करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि इट इज गोइंग टू गिव यू एरर। थोड़ी देर पहले आपने देखा था वो एरर दे रहा था। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस से। हैव अ लुक एट दिस। आई एम जस्ट गोइंग बैक एंड सेइंग अपडेट एंड सरप्राइजिंगली यू फाइंड दैट oh it is working. So is it really modifying the department? Please note, पहले जो 10 था आपने उसको 60 कर दिया है। oh I found that पहले देव का 10 था, अब ये 60 हो गया। तो सर अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या, ये अगर आपको चेक करना है, गो एंड चेक इन एम्प्लॉइज। क्योंकि एम्प्लॉइज के अंदर हमारे पास दो एम्प्लॉइज थे, एक अमित था और एक राहुल था, जो दोनों उस डिपार्टमेंट में थे। एंड हैव यू नोटेड दैट जो पहले वहां पर 10 थे, they are now suddenly modified to become 60-60. तो what is on update cascade? On update cascade का मतलब ये है, अगर अपने पेरेंट टेबल के अंदर, अगर अपने पेरेंट रो के अंदर अगर चेंजेस किए हैं, करस्पॉन्डिंग आपके चाइल्ड टेबल के अंदर, चाइल्ड रोज के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट, यू कॉल इट द ऑन कैस्केड अपडेट। On cascade update. And on the parallel line, you go ahead. If you try to delete it, so if I simply say that delete from departments, delete from departments, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि वो delete allow नहीं करता है। Now you find that when I am saying delete department number is equal to 60, ऑलरेडी मैंने 10 को चेंज करके 60 कर दिया है। Now moment I have deleted 60, sorry, moment you have deleted from 60, now you will find that it will delete it. And not only it will delete it, not only it will delete the departments, you go and check that, oh, it is easy deleted. Yes, 60 is deleted, 60 is deleted, but not only 60 is deleted, corresponding जो दो employees आपके पास थे, Amit and Rahul, even both employees are also deleted. Amit and Rahul, both employees are also deleted. I hope you find it surprising. तो ये जो कंसेप्ट था, इसको हम लोग कहते हैं ऑन कैस्केड डिलीट। तो व्हाट इट इज डूइंग, आप लोग करके देखना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऑन कैस्केड डिलीट, इट विल डिलीट, डिलीट डिपार्ट, सॉरी डिलीट नहीं, यहाँ पर अपडेट है, अपडेट, अपडेट डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 टू डिपार्टमेंट नंबर 60 इन डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल। सो ऑब्वियसली इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट रो।
and also update department number is equal to 60 in employees table. जो करस्पॉन्डिंग चाइल्ड रोज थे, चाइल्ड रोज करस्पॉन्डिंग टू अमित एंड राहुल, जो रोज थे आपको वहां पर मॉडिफाइड दिखाई देंगे. यू कैन चेक दैट. एट द सेम टाइम ओवर हेयर ऑन कैस्केड डिलीट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, department number is equal to 10 from dpts table, which is nothing but the department number is equal to 60 departments table, which is nothing but a parent row. आप लोगों ने parent row delete कर दिया, and I'm saying that also delete department number is equal to 60 in employees table, obviously corresponding Amit and this. So ये होगा, and this is nothing but a magic of on delete cascade and on update cascade, which is supported in MySQL database. It is not supported in many of the leading RDBMS. ये शायद Oracle में भी supported नहीं है, ये even MS SQL में भी supported नहीं है. वहां पर अगर ऐसी फंक्शनलिटी करनी है तो लोग वहां पर ट्रिगर्स यूज करते हैं, ट्रिगर नाम का कंसेप्ट यूज करते हैं. MySQL में ये फंक्शनलिटी आपके लिए बिल्ट इन दिया गया है. समीर, आई होप नाउ इट इज क्लियर. बाकी लोग, आप लोग समझ में आ ही गया होगा. व्हाई डोंट यू ट्राई इट एंड सी टू इट दैट वो टेबल ड्रॉप करके फिर से एक बार रिक्रिएट करना, तब जाके वो वर्क होने वाला है. डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद ओनली लास्ट क्वेरीज. करेक्ट? if you are done only with the last query, then there will be a problem. So recreate that everything. So table drop करो, टेबल ड्रॉप करके सब कुछ क्रिएट करो. एंड कॉमन सेंस टू बी फॉलोड. जब कभी टेबल ड्रॉप होता है तो उसके अंदर के जितने सारे कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट ड्रॉप हो जाते हैं. तो जब हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं, नए टेबल के अंदर हम लोग फिर से नए से कंस्टेंट चालू करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. चाइल्ड से पेरेंट नहीं चेंज होता क्या? बिल्कुल नहीं. चाइल्ड से पेरेंट कभी नहीं चेंज होता. प्लीज नोट, चाइल्ड से पेरेंट कभी चेंज नहीं होता. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. रिद्धि, आप मेरे को क्या दिखा रहे हो? व्हाट इज करेक्ट? नो, इट विल वर्क प्रॉपरली. रिद्धि, टेबल के कंटेंट देख के मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपने ये ठीक से क्रिएट किया है क्या. सो आपको टेबल क्रिएशन में आपको वापिस से ऑन कैस्केड अपडेट, ऑन कैस्केड डिलीट लगाना था. कंटेंट तो वैसे भी वही रहेंगे. उसके बाद में जो आप लोग क्वेरीज दे रहे हो, आप लोगों ने ऊपर देखा कि ये वाले क्वेरीज ऊपर एरर दे रहे थे, अब वो एरर नहीं दे रहे. इंस्टेड ऑफ एरर दे आर ऑल्सो चेंजिंग, ऑल्सो डिलीटिंग योर चाइल्ड रोज. आपके टेबल के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट लगाया है या नहीं लगाया है, ये कैसे चेक करना है, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी मैंने शायद यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने कंस्ट्रेंट लगाया है, आपने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, दैट यू कैन डू बाय चेक. यू कैन चेक इट बाय सेइंग शो क्रिएट टेबल, शो क्रिएट टेबल. वहां से देख के आपको पता चलता है कि आपने कंस्ट्रेंट लगाया है या नहीं लगाया है. कैसे होता है ऐसे? मुझसे भी होता है, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया था. करेक्ट? सो बाय लुकिंग एट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगाए थे. सो इट इज बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू नो शो क्रिएट टेबल. यू कैन ऑलवेज चेक दैट ओके लास्ट टाइम आपने जो भी कंस्ट्रेंट क्रिएट किए थे वो कौन से थे. डन? ओके, ग्रेट. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. तो सर फॉरेन की में और बताने लायक कुछ है? टू बी फ्रैंक, जितनी लीगल चीजें थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो सारी मैंने बता दी. अब जो बचा है ये अभी इंपॉर्टेंट तो है, बट ये बेसिक लेवल का नहीं है, ये एडवांस लेवल का. आई रिपीट, ये बेसिक लेवल का नहीं है, ये एडवांस लेवल का है. तो सर क्या है? लिसन केयरफुली. सपोज दैट मुझको मेरे डेटाबेस का बैकअप लेना है. मेरे पास कुछ 200-500 डिपार्टमेंट है. लिसन केयरफुली, मेरे पास कुछ 200-500 डिपार्टमेंट है और मेरे पास कुछ 5-6 लाख एम्प्लॉयज है. 200-500 डिपार्टमेंट है, 5-6 लाख एम्प्लॉयज है. और मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा मुझको डेटा का बैकअप लेना था. सो पूरा का पूरा डेटा का बैकअप लेना था, तो मैंने उसका एक सिक्वल स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया. सिक्वल स्क्रिप्ट इन द सेंस
सारे इंसर्ट क्रिएट टेबल के क्वेरीज, इंसर्ट टेबल के क्वेरीज मैंने एक डॉट सिक्वल फाइल में लिखे। ये डॉट सिक्वल फाइल आपको पता है, आप लोग इतने दिनों से उसको यूज कर रहे थे, HRDB.SQL वगैरह वगैरह काइंड ऑफ। तो मैंने एक पूरा का पूरा सिक्वल स्क्रिप्ट बनाया। अब ये पूरा का पूरा सिक्वल स्क्रिप्ट बनाया, ये मैंने बैकअप क्यों लिया है? क्योंकि इस सर्वर पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मुझको लेट्स से दैट मेरे फ्रेंड के सर्वर के ऊपर चलाना है या किसी दूसरे सर्वर के ऊपर चलाना है। तो सर ऐसे वक्त में क्या किया जाएगा? लिसन केयरफुली, ऐसे वक्त में करना कुछ नहीं है, यहाँ से हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाया, ये स्क्रिप्ट मैं वहां पर जाके रन कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये स्क्रिप्ट रन करने के लिए बहुत टाइम जा रहा है। और बहुत टाइम क्यों जा रहा है? आपके पास 400-500 डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट तो आप लोगों ने बना लिए, बट आपके पास अगर कुछ 5-10 लाख एम्प्लॉय है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट वो 5-10 लाख एम्प्लॉयज जब जब इंसर्ट किए जाएंगे, उसके हर एक इंसर्ट के साथ में उसका फॉरेन की कंस्ट्रेंट चेक किया जाएगा। उसके हर एक इंसर्ट के साथ में उसका फॉरेन की कंस्ट्रेंट चेक किया जाएगा। तो टिपिकली ये जो डेटा बैकअप वाला जो काम होता है, डेटा बैकअप लेना है और वापस से रिस्टोर करना है। मैंने कहा ना, एक सर्वर से बैकअप लिया, दूसरे सर्वर में रिस्टोर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास 2 सर्वर्स है। एक सर्वर के ऊपर पूरा डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस है, वहां पर कुछ तो लेट से 500 डिपार्टमेंट है, 500 डिपार्टमेंट्स आर देयर, 5-10 लाख एम्प्लॉइज रिकॉर्ड आर देयर। ऑब्वियसली वहां पर ये प्राइमरी की फॉरेन की सब कुछ लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है? बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट अवर डेटा इज प्रॉपर वैलिड डेटा। ऐसे करके हम लोगों ने लगाया हुआ है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिक। बट देन वंस इन while we decided that we will take a backup and we will create a copy onto the another server. Now to create a copy onto the another server, let's say that we made a SQL script. So SQL script कैसे बनाते हैं? वैसे रेडीमेड टूल आते हैं, MySQL डंप नाम का एक टूल आता है, MySQL एक्सपोर्ट नाम का टूल आता है। तो देर आर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल यूजिंग विच आप लोग SQL स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने SQL स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया। अब ये SQL स्क्रिप्ट में क्या है? SQL स्क्रिप्ट में आपका क्रिएट टेबल का क्वेरी है, SQL स्क्रिप्ट में आपके 500 इंसर्ट क्वेरीज है डिपार्टमेंट के लिए, उस SQL स्क्रिप्ट के अंदर आपका एम्प्लॉय का टेबल है, क्रिएट टेबल है, और आपके जो 5-10 लाख एम्प्लॉयज है उन सबके इंसर्ट क्वेरीज भी है, ऑब्वियसली विद कंस्ट्रेंट। अब ये जो पूरा SQL स्क्रिप्ट है, मैं दूसरे डेटाबेस में रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं दूसरे सर्वर के ऊपर दूसरे डेटाबेस में जब मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज टेकिंग हेल लॉट ऑफ टाइम। व्हाई इट इज टेकिंग हेल लॉट ऑफ टाइम? पहले उसने डिपार्टमेंट तो बना लिया, डिपार्टमेंट बनाते वक्त उसको प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने एम्प्लॉय बनाने की कोशिश की, एम्प्लॉय बनाने की कोशिश की, अब आपके पास 5-10 लाख एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय के इंसर्ट में वो क्या कर रहा है? कंस्ट्रेंट चेक कर रहा है। हर एक एम्प्लॉय के इंसर्ट में वो सारे कंस्ट्रेंट चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि इसका डिपार्टमेंट नंबर सही है या नहीं है। अब अगर आपके पास 5-10 लाख एम्प्लॉयज है, 5-10 लाख एम्प्लॉय जब आप लोग वहां पर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो सर क्वेश्चन इज दैट, तो सर क्या करें? इज दिस एनी शॉर्टकट वे? शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट वे। ऐसे वक्त में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मतलब जहां जहां पर मैंने डेटाबेसेस के ऊपर देखा है, यूजुअली नॉर्मल लोग ये काम नहीं करते, ये काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, नॉर्मल यूजर ने ये करना एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो यूजुअली जब ऐसे बैकअप लेने होते हैं जहां पर बहुत हेवी रिलेशंस है और बहुत ह्यूज डेटा है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है उसको टेम्पररी डिसेबल कर देते हैं। मैंने क्या बताया? फॉरेन की कंस्ट्रेंट टेम्पररीली डिसेबल कर देते हैं। और फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिसेबल कर, टेम्पररी नॉट परमानेंट, परमानेंटली डिसेबल कर दोगे आपके डेटा की इंटीग्रिटी की वाट लग जाएगी। तो उसको टेम्पररी डिसेबल कर देते हैं, ताकि जब डेटा इंसर्ट हो तो हर एक रिकॉर्ड के लिए चेक ना हो। और वैसे भी आप लोग एक सर्वर से लेके दूसरे सर्वर में डाल रहे हो, उस सर्वर में ऑलरेडी फॉरेन की कंस्ट्रेंट थे, तो वहां पर जो डेटा है वो सारा वैलिड डेटा है। अब वही वैलिड डेटा आपको दूसरे डेटाबेस सर्वर के अंदर उसका सिर्फ कॉपी क्रिएट करना है। तो आई एम सेइंग दैट दिस कैन बी डन क्विक, दिस कैन बी डन इन अ फास्टर वे बाय बाय डिसेबलिंग फॉरेन की कंस्ट्रेंट टेम्परली, टेम्परली। तो पहले वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिसेबल करते हैं, पूरा का पूरा बैकअप रिस्टोर करते हैं, और बैकअप रिस्टोर करने के बाद में फिर से एक बार फॉरेन की कंस्ट्रेंट एनेबल कर देते हैं। एंड व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज इज दैट इस जो कुछ भी आपका डेटा इंसर्शन है, दैट गोज वेरी फास्ट, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय, आपके पास 5-10 लाख एम्प्लॉयज है, हर एक एम्प्लॉय के लिए वो आपका कंस्ट्रेंट चेक नहीं करता। एंड दैट इज अ ब्यूटी, that is how ना बैकअप एंड रिस्टोर काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर डन। लेकिन क्वेश्चन ये है
ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट लोग डिसेबल करते कैसे, वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिसेबल कैसे करते हैं, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट जॉब. दैट इज नथिंग बट अ स्पेशल वेरिएबल इज देयर. which variable is there? Select @ foreign key checks, foreign underscore key underscore checks, फॉरेन की चेक्स. सो फॉरेन की चेक्स नाम का मेरे पास वेरिएबल है. अभी आप लोग देखोगे बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल 1 है. 1 का मतलब क्या है? फॉरेन की चेक्स आर एनेबल्ड एट दिस मोमेंट. फॉरेन की चेक्स आर एनेबल्ड. अब मैं क्या कह रहा हूं, यू कैन गो देयर एंड यू कैन मेक दिस वेरिएबल, this variable is equal to 0. Go there, make it equal to 0. Moment you make it equal to 0, now I'm saying that your foreign keys are disabled. And now foreign key checks are disabled. You can cross check that. Are foreign keys really disabled? ओके, फॉरेन कीज आर डिसेबल्ड. अब इसके बाद में अगर आप लोग फॉरेन कीज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय. सीट केयरफुली. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज. आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ न्यू एम्प्लॉय, लेट्स से 6. द एम्प्लॉय इज लेट्स से विशाल समवेयर क्या था, which records are their department number. Let's say that I'm trying to insert Vishal in department number 100. I'm trying to insert Vishal in department number 100. ये 100 नंबर का मेरे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है. ऑब्वियसली इंसर्ट नहीं होना चाहिए था. और कल आप लोगों ने चेक किया था, ऐसा इंसर्ट हो भी नहीं रहा था. आप लोग नोट किया था नितिन एंड सारंग, वी वर नॉट एबल टू इंसर्ट इट. हाउएवर, now if I'm trying to do that, now if I'm trying to do it, now you will realize that even this insert will work correctly. तो आप बोले सर उसके अंदर कोई डिपार्टमेंट है क्या? प्लीज नोट दैट द एम्प्लॉय इज इंसर्टेड बट करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट इज नॉट प्रेजेंट. या 100. अब बोलो सर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट इज नॉट प्रेजेंट. नो, नॉट एट ऑल प्रेजेंट. यू कैन क्रॉस चेक. देर इज नो सच डिपार्टमेंट प्रेजेंट. there is no such department present, and still I'm saying that this is allowed, not valid, but it is still allowed because foreign key checks are disabled. फॉरेन की चेक्स आर डिसेबल्ड. ऑब्वियसली बाद में अगर आप लोग फॉरेन की चेक वापस से एनेबल करते हो, हैव लुक एट दिस. वापस से मैंने फॉरेन की चेक फिर से एक बार एनेबल कर दी है. ऑल राइट, ये फॉरेन की चेक्स आर इनेबल्ड. वंस फॉरेन की चेक्स आर इनेबल्ड, नाउ आई ट्राई टू इंसर्ट एनी न्यू एम्प्लॉय. लेट मी जस्ट फाइंड आउट 7. I'm trying to add some new employee onto some department, and now you find out, is it working? Now you will find that it is giving you the constraint saying that it is not allowed. It is not allowed. Error. Because foreign key checks, they are now enabled. चलो अच्छी बात है, it is enabled. But sir, what about the employee who is already inserted? Please note that जो employee एक बार insert हो गया, वो हो गया, उसके साथ आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो. फॉरेन की चेक्स कब किए जाते हैं? ड्यूरिंग डीएमएल ऑपरेशन किए जाते हैं. ड्यूरिंग सिलेक्ट कोई फॉरेन की चेक नहीं होता. फॉरेन की चेक कब किए जाते हैं? ड्यूरिंग ड्यूरिंग आपका डीएमएल ऑपरेशन किए जाते हैं. फॉरेन की चेक्स कभी भी यहां पर नहीं किए जाते. सो दिस इज समथिंग दैट यू सी. अब ये रिकॉर्ड, सर ये आपका इनवैलिड रिकॉर्ड ऐड हो गया है क्या? अब हो गया. अब ये गलती आपकी है, आपने गलत जगह पे फॉरेन की चेक डिसेबल किए. मैं फिर से बता रहा हूं, फॉरेन की चेक्स कहां पर डिसेबल किए जाते हैं? मोस्ट कॉमन सिनारियो, जब हमें डेटाबेस के बैकअप लेने होते हैं, तब हम लोग फॉरेन की चेक्स डिसेबल करते हैं. क्योंकि वहां पर हम लोग पर्पसफुली करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा डेटा इंसर्शन का जो स्पीड है, वो स्पीड बढ़ाना होता है. अदरवाइज इट विल बी टेकिंग टू लॉन्ग टाइम. तो वहां पर हम लोग टेम्पररी फॉरेन की चेक डिसेबल करते हैं, बाद में पूरा डेटा इंसर्ट करवाते हैं, और बाद में हम लोग वापस से फॉरेन की चेक एनेबल करवाते हैं. ऐसा हम लोग यूजुअली करते हैं. इन अ प्रोडक्शन एनवायरमेंट ऑल्सो दिस इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. However, keeping foreign key checks disabled permanently, there are likely chances are that कि आप लोग का डेटा इंटीग्रिटी लूज कर रहे हो, आप लोग इनवैलिड डेटा वहां पर एंटर करवा रहे हो. आई विश आप लोग इसको करके देखो. ये ऐसा करना तो नहीं चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. मैं वो भी लिखता हूं, डोंट आस्क मी आपने ऐसा क्यों किया है, नॉट गुड प्रैक्टिस.
राइट। आप लोग करके देख सकते हो एंड यू कैन इंश्योर दैट यस थिंग्स आर वर्किंग वेल। ऐसा हो सकता है लेकिन करना मत, मैं बार बार बता रहा हूँ। यस अगेन इफ यू डिसेबल द फॉरेन की चेक आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो सी, अभी जो जो प्रॉब्लम पहले आ रहे थे, पहले आपको इंसर्ट को प्रॉब्लम आ रहे थे, अपडेट को प्रॉब्लम आ रहे थे, डिलीट को प्रॉब्लम आ रहे थे। अगर आपने फॉरेन की चेक डिसेबल कर लिए, अब आपका इंसर्ट भी अलाउड हो जाएगा, अपडेट भी अलाउड हो जाएगा, डिलीट भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी चेकिंग डीएमएल के वक्त नहीं होगा। कुछ भी चेकिंग डीएमएल के वक्त नहीं होगा। आई होप रितेश दैट इज क्लियर। दैट इज गुड। सो थिंग्स आर गोइंग करेक्ट। मैंने जो एग्जाम्पल बताया उसको कहीं पर तो लिख के रखना, मैंने भी यहाँ पर लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा है। मैंने आपको दो अलग अलग कंसेप्ट पढ़ाए हुए। हैव अ लुक एट दिस। वन ऑफ द कंसेप्ट आई told you that MySQL has got on delete cascade clause and on update cascade clause. On delete cascade clause क्या करता है? Ensure that child rows are automatically deleted when the parent row is deleted. On update cascade clause does the same for the update operation. That is there. uh, Taking backup of a database is a different concept and creating a save point is a different concept. सेव पॉइंट हमेशा मेमोरी में क्रिएट होता है। जो ट्रांजैक्शन में आप लोग सेव पॉइंट क्रिएट करते हो वो बैकअप नहीं है, इट इज द स्टोरिंग अ स्टेट ऑफ अ डेटाबेस। जब मैं कहता हूँ बैकअप लेना, बैकअप लेने का मतलब है जो कुछ भी अभी आपके डेटाबेस के अंदर है वो पूरा का पूरा उसका स्क्रिप्ट क्रिएट करना, ताकि आप लोग उसका कॉपी दूसरे डेटाबेस के ऊपर जाके रन कर सके। दैट इज कॉल्ड एज अ टेकिंग बैकअप एंड रिस्टोर। और अगर आपको बैकअप और रिस्टोर के बारे में जानना है तो देर आर वन और टू कमांड्स। MySQL डंप नाम का एक कमांड है जो आपने पढ़ना चाहिए। आई होप राजेंद्र दैट इज क्लियर। बाय डिफॉल्ट फॉरेन की चेक्स आर enabled and they can be disabled by saying like this: फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड एट दिस लेवल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ लिसन केयरफुली। फॉरेन की चेक्स कहां पर गया? हाँ, फॉरेन की चेक्स इज इक्वल टू 0। नाउ नो checks will be performed while DML. So records can be inserted, updated and deleted directly. Which records? I'm talking about parent records. So parent records can be inserted, updated or deleted directly. However, this is done only in special cases. In special cases like database बैकअप। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया हुआ है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, सो दैट लेटर ऑन यू कैन रिकॉल दैट। और एक चीज लास्ट, मुझको कल किसी ने तो पूछा था और शायद मैंने कल उसका आंसर भी दिया था, जाते जाते पूछा था उसने, सेइंग दैट कि हम लोग फॉरेन कीज अप्लाई कर सकते हैं क्या कॉलम लेवल के ऊपर? तो मैंने कहा था यस, आप लोग टेबल लेवल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग कॉलम लेवल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप लोग कॉलम लेवल पे फॉरेन कीज अप्लाई करते हो दैट डजंट वर्क वेल इन MySQL। जब कॉलम लेवल पे आप लोग अप्लाई करते हो दैट डजंट वर्क वेल इन MySQL। और कल जो मैंने नोट्स का फाइल बनाया था उसके अंदर मैंने वो नोट लिखा भी है, जो किसी ने तो पूछा था उसमें। इन माय ओपिनियन प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में आपको जो कुछ भी बताना चाहिए था आई हैव टोल्ड यू। यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की? दिस इज गुड टाइम टू आस्क, अदरवाइज आई विल गो ऑन अ चेक कंस्ट्रेंट। यू वांट टू आस्क समथिंग? एज आई सेड दैट कि आप लोगों को कुछ भी डाउट आएंगे आप लोग प्लीज उनको कहीं पर तो नोटपैड में टाइप किया करो, सो दैट जब कभी मैं आपको टॉपिक खत्म हो जाए मैं आपको डेफिनेटली चांस दूंगा दैट डू यू वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड एट दैट टाइम यू पोस्ट इट, so that we do not disturb the class, right?
सो फॉरेन की के बारे में हम लोग ने कल शुरू किया था, जो कुछ भी चालू किया था वो आज मैंने खत्म कर दिया है, और कुछ एडवांस चीजें मैंने आपको बताई फॉरेन की के बारे में। आई डिडंट सी एनी डाउट, सो रुको जरा। यस, देयर इज सम डाउट। When we inserted invalid data, if we perform any DML operation on that data, will it give any error? It will give you error provided you do uh, DML operation, provided you do DML operation on that column value। मतलब मान लो अभी आप लोगों ने वहां पर कुछ तो डिपार्टमेंट नंबर क्या इंसर्ट किया हुआ है, या अपने डिपार्टमेंट नंबर अभी 100 इंसर्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लगाते हो और 100 से चेंज करके अगर आप उसको लेट से 200 करते हो, देन इट विल गिव यू एरर। आकाश, आई होप इट इज क्लियर। जब यहाँ पर ये 100 है, आप इसको अपडेट करके 200 कर दो, नाउ इट विल गिव यू एरर। डिलीट में तो वैसे भी वो चेक नहीं करता, सो देयर इज एब्सोल्युटली नॉट एन इशू, राइट। और एक चीज शायद आप लोग नोट की होगी, अभी ये मेरे पास जो टेबल है, अभी एक जो मेरे पास टेबल है, कैन आई डायरेक्टली डिलीट, कैन आई डायरेक्टली डिलीट द होल टेबल? हैव यू नोटेड? कैन यू डायरेक्टली डिलीट होल टेबल? आप लोग पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर सकते हो क्या? विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट? Drop table departments? No, you cannot delete directly the whole table until your employees are deleted. लास्ट टाइम आपने नोट किया था, जब मैं इसको रन कर रहा था तो उसने मेरे को एरर दिया था, तो मैंने वापस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया और बाद में इसको ड्रॉप किया। सो अगेन इट इज नॉट ओनली फॉर द रो, इट इज नॉट ओनली फॉर द रो, बट इट इज ऑल्सो फॉर द टेबल। कल किसी को तो ये एरर आ रहा था कि उसका कोई तो कस्टमर का या कोई तो टेबल डिलीट नहीं हो रहा था, और तब मैंने बताया था कि देयर आर लाइकली चांसेस आर दैट कहीं पर तो आपने कुछ तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करके रखे हुए हैं जहां पर आपका टेबल रेफर हो रहा है। तो इन दैट केस यू कैन नॉट डिलीट डिपार्टमेंट्स टेबल बिफोर एम्प्लॉयज टेबल, राइट। Now you understood everything. Let us just go ahead and let us talk about the next type of constraint. And my next type of constraint, last, called a check constraint. Check constraint. And if you are checking check constraint, सबसे पहला कमांड जो मैं आपको कहूंगा, you ensure that your version, your MySQL version is above 8.0.16. Your MySQL version must be above, must be must be greater than or equal to 8.0.16। क्योंकि जिन लोगों के पास ये वर्जन 8.0.16 से नीचे है, जिनके पास 8.0.15 है, जिनके पास 5.7 है, ऐसे मुझको पता है इस क्लासरूम में ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन 2-3 लोग जरूर है जिनका ये वर्जन इससे कम होगा। आप लोग ये असाइनमेंट मत करना, अभी भी मत करना और बाद में भी मत करना, क्योंकि आपके केस में वो वर्क नहीं होने वाला है। चेक कंस्टेंट माइसिक्वल में आपके केस में क्वेरी चल जाएगा, क्वेरी चल जाएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा। क्वेरी को एरर नहीं देगा, लेकिन इट विल नॉट इवन डू द चेक कंस्टेंट। हाँ, मुझको पता है मेजॉरिटी ऑफ सबका 21 ही है, डालने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है, मुझको पता है आपका 21 ही है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का 20 है, 21 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बच्चे मुझको पता है कि उनके यहाँ पर कुछ तो 8.0 कुछ तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उन्होंने 5.6 या 5.7 इंस्टॉल किया था। तो ज्यादा नहीं है, 300 के क्लास में 3 लोग भी नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो जो जिनको ऐसा प्रॉब्लम होगा वो लोग अपना मुंह बंद रखना और अपना कंप्यूटर भी थोड़ी देर के लिए बंद रखना, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर जूम चालू रखना, माइसिक्वल बंद रखना, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द चेक कंस्ट्रेंट। व्हाट इज चेक कंस्ट्रेंट? The check is another integrity constraint in SQL. So what is the meaning of this? In this particular constraint, it specifies the column, it specifies condition on a column. It specifies condition on the column. ये आपके कॉलम के ऊपर कंडीशन चेक करता है। ओके, वेरी गुड। क्या कंडीशन चेक करता है? आपका डेटा सही है या नहीं है, इसका कंडीशन चेक करता है। डेटा कैन बी इंसर्टेड और अपडेटेड only if condition is true, otherwise there will be error. Data will be inserted or updated only if the condition is true, otherwise there will be error. So ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। Check constraint can be applied at the table level or it can be also applied at the column level. आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉलम लेवल का अपडेट है, और ये जो सबसे एंड में आप लोग जो लिखते हो, इट इज दिस वन। तो चलो सर करके देखते हैं। यस, करके देखते हैं। आई विल शो यू द एग्जांपल। एज आई सेड दैट आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर वर्क हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर वर्क नहीं होगा,
आप लोग टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स, सिट बैक एंड जस्ट वॉच दिस. So let us create a new table. Create table. Let's say that I'm saying that new employee. A create table new employee, and I'm having suppose ID is integer. I'm saying that it is a primary key. या primary key अभी आपको अच्छे से समझ में आता है तो मैंने इसको primary key कह दिया. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर इसको कुछ तो नाम भी चाहिए, अच्छी बात है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं. There is some name given to the employee. और एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी मिलना, राइट? बाकी और कुछ ना मिला ना मिले, सो सैलरी इज इंपॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट गिविंग दैट सैलरी इज लेट्स से जॉब. अनदर वन, लेट्स से हमारे एम्प्लॉय को कमीशन भी चाहिए. ओके, कमीशन भी चाहिए. यू ऑल्सो डिक्लेयर द कमीशन. आपके एम्प्लॉय को जॉब भी चाहिए. ओके, जॉब भी चाहिए तो आप लोग उसको कुछ ना कुछ तो जॉब भी दे दो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. वैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बाल कामगार काम नहीं करते, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उनका एज भी ले लूँ. एंड इफ द एज इज प्रोबेबली लेस देन 18, आई वांट टू से दैट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इट इज नॉट अलाउड. So this is kind of a new employees table I'm trying to create it. Now listen carefully. I want to apply kind of a constraints there. My very first constraint is that ये age जो है, that age must be above 18. If age is below 18, that kind of record should never get inserted. तो सर ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? Just go ahead, write check, and you ensure that age is greater than or equal to 18. You first ensure that your age is greater than or equal to 18. If it is not greater than or equal to 18, you want to give the error. You want to give the error. ये आप लोग कर सकते हो. वैसे हम लोग कह रहे हैं ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, ये सैलरी कम से कम, महंगाई है तो कम से कम 5,000 के ऊपर होनी चाहिए. करेक्ट नो? तो आई एम सेइंग दैट वैसे 5,000 में आजकल क्या होता है वो बात अलग है, बट स्टिल हम लोग कहेंगे कि सैलरी मस्ट बी अबव 5,000. ओके, दैट इज गुड. But at the same time, I want to ensure that, listen carefully, ये जो सैलरी एंड प्लस कमीशन है, इसका जो टोटल है, आई वांट टू इंश्योर दैट दिस दिस टोटल should not exceed a certain limit. Something like this. I'm saying that I'm putting a check saying that salary plus commission is always less than or equal to 50,000. इससे ज्यादा हम लोग किसी को सैलरी देते नहीं है. सो आई एम सेइंग दैट दिस कंडीशन आई वांट टू गिव अ चेक दैट सैलरी एंड दिस वन इज लेस देन दैट. जॉब आप लोग कह सकते हो कि आपकी कंपनी में कौन कौन से जॉब्स हैं. सो यू वांट टू पुट सम कंडीशन फॉर दैट एज वेल. सो अगेन आई एम सेइंग दैट चेक जॉब इन शॉर्ट, जो जो हम लोग वेयर क्लॉज में लगाते हैं ऐसे कंडीशंस हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ये मुझको आपको बताना था. सो जॉब इन, लेट्स दैट ही कैन बी क्लर्क, he can be manager, or he can be, let's say that salesman, okay, salesman. That's it. हमारे पास इतनी ही जॉब्स है, ये छोड़ के और कोई जॉब नहीं होना चाहिए. प्लीज नोट, मैं कंस्टेंट लगा रहा हूँ डेटा के ऊपर कि क्या वैलिड डेटा है और क्या इनवैलिड डेटा है. यहाँ पर नल लगाना अलाउड है क्योंकि मैंने कहीं पर भी नॉट नल नहीं लगाया. लेट्स से यहाँ पर सिर्फ मैंने नॉट नल लगाया, सो मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये नल नहीं हो सकता, ये नल नहीं हो सकता. बीइंग अ प्राइमरी की ये नल नहीं होना सकता. तो सैलरी आपको नल डालनी है तो आप लोग नल डाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग नल नहीं डालना है, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालनी है, देन दैट वैल्यू मस्ट बी अबव 5,000. कमीशन के ऊपर तो मैंने कोई चेक नहीं लगाया, कमीशन आपको जो लगाना है वो लगाओ. जॉब आप कुछ भी लगा सकते हो, but you need to ensure that the job value should be either clerk or manager or salesman. इसके अलावा अगर और कोई जॉब होगा तो it should fail. Your insert operation or your update operation should fail there. Something similar, you are taking the age of a person. If that age of a person is less than 18, if it is less than 18, then your insert operation should fail then and there. And along with that, there is one constraint. I'm trying to write it at the table level. One constraint I'm trying to write at the table level. यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि सैलरी प्लस कमीशन, ये दोनों का जो टोटल है ये कभी भी 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. 50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. This is what all we can do. Yes, Amit, that will also work. Not a problem. Let me just go back, and I have done this syntax from after a long time. तो मुझको लगा ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा.
Okay. uh, Corresponding to the syntax, salary is greater than equal to 5000. इसमें इसको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. आई गेस पैरेंथेसिस आर मिसिंग, डोंट वरी, चेक कर लेंगे हम लोग. आई एम गिविंग अ कंडीशन. कंडीशन शुड बी इन पैरेंथेसिस आई गेस. रुको, एज में भी शायद उसको प्रॉब्लम आएगा. इन दैट केस आई एम पुटिंग अ कंडीशन इनटू द पैरेंथेसिस. Let me check it once again. Now is it valid? Yes, it is valid. So all your conditions must be given there. All your conditions must be given within parenthesis. Please note, आपका हर एक condition आपको parenthesis के अंदर देना है. Take care of that. Now once it is done, I'm just going ahead. Let me try to insert the record. So insert into new employee. Very good. Values, ID is 1, name is A, whatever. सैलरी आपको क्या देनी है? कुछ भी दे दो. मैं 10,000 दे रहा हूँ सैलरी, अच्छी बात है. आई एम गिविंग कमीशन. लेट्स से कमीशन 1000 भी बहुत है, नॉट अ प्रॉब्लम. जॉब आई एम मेंशनिंग मैनेजर. जॉब आई एम मेंशनिंग मैनेजर. एज आई एम सेइंग दैट 20. कुछ नसीब बच्चा है, जल्दी जॉब लग गई इसको. ठीक है, 20. No problem. The record is inserted properly. However, let me try to insert something different. ये सेकंड पर्सन इज देयर, और इसको मैं कह रहा हूं कि इसका सैलरी में दे रहा हूं 4000. एंड नाउ इफ आई एम गिविंग सैलरी 4000, दिस विल गिव मी एरर. व्हाट इज द एरर? दैट सैलरी इज लेस देन 5000. if salary is less than 5000, this is going to fail. Just check whether it is really failing. ये बता रहा है कि आपका कंस्ट्रेंट इज वायोलेटेड. ओ दैट इज ग्रेट. व्हाट अबाउट, हम लोग आगे जाते हैं. लेट्स से दैट आई एम ट्राइंग टू टेक अनदर वन. लेट्स से दैट एक की सैलरी है 40,000. सी इट केयरफुली. सैलरी इज 40,000 एंड आई एम सेइंग दैट इसका कमीशन है 11,000. ए कमीशन इज 11,000. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? दिस विल अगेन गिव द एरर. ए व्हाई एरर? अब यहाँ पर एरर क्या है? क्योंकि सैलरी प्लस कमीशन इज नाउ गोइंग अबव 50,000, एंड सिंस सैलरी प्लस कमीशन इज गोइंग अबव 50,000, it is again giving me the error. Okay, that is great. So something else. Let's say that I'm giving him salary of, let's say, 8,000. I'm giving commission of, let's say, 2,000, but this person is only at the age 16. Okay, and if this person is only at the age 16, now what will happen? Now there is again an error. What is the error problem? अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है? What is गड़बड़ यहाँ पर क्या है? Error, age is less than 18, right? Age is less than 18, so it is getting failed. Last one, I'll try one more. वैसे 16 के ईयर में इसको मैनेजर बनाने का ऑफर अच्छा था. एनीवे, आई एम जस्ट गोइंग अहेड. यू ट्राई टू पुट लाइक अ 5. वी हैव गॉट ई, एंड आई एम राइटिंग, लेट्स से 8,000 plus 2,000, एंड आई एम सेइंग दैट व्हाई डोंट आई मेक इट लाइक अ प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट नाम का कोई जॉब हमारे इसमें अलाउड ही नहीं है. आई एम सेइंग दैट इसका एज वैसे लेट्स से 40 है. एज भी अच्छा है, एज भी अच्छा है. अब ये कह रहा हूँ, ओ सॉरी, दिस इज नॉट अलाउड. सो आई से दैट अगेन एरर, job is not valid as per this. I hope you people understood what is check constraint. So check constraint जब हम लोग लगाते हैं, check constraint के अंदर हम लोग कुछ चीजें अलाउ नहीं करते. करेक्ट? सो दैट इंश्योर दैट आपने कोई रॉन्ग डेटा एंट्री नहीं किया हो. कभी कभी क्या होता है, लोग एप्लीकेशन बना लेते हैं, वहां से इनपुट ले लेते हैं, डेटाबेस में डंप कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे लोग चेक करना भूल जाते हैं. अगर आपने एप्लीकेशन लेवल पे अगर अपने चेक करना भूल गए, देन देयर कैन बी प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम ना हो, दैट इज व्हाट केयर वी आर टेकिंग इट एट द डेटाबेस लेवल. एट द डेटाबेस लेवल, unfortunately, this feature is available only from MySQL version 8.0.16 onwards. इससे पहले ये फीचर नहीं था. You people can go ahead, try that quickly, and just ensure that you people are getting the same errors. अगर आपको error नहीं आ रहे, it only means that your MySQL version is not appropriate. It only means that your MySQL versions are not appropriate. Rest everything is fine. यस, यू शुड बी गेटिंग एरर. अगर आपको एरर नहीं आ रहे तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, देन इसका मतलब आपके MySQL के वर्जन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है.
So last lecture, I guess somewhere we started with something. Last to last lecture, we started with something like alter table. Then we talk about like indexes. Then we talk about like constraints. So majority of things are done. And now we are going ahead. We want to talk about something more. Yes, subqueries. आज का टॉपिक ही subqueries है. And there is some good reason I want to teach you subqueries today, so that tomorrow you will get little time where you can digest the subqueries. Subqueries is difficult, not really, but yes, bit tricky as well. So you get little time to digest it. It will help you to understand it better. And that is the reason I was really trying it कि इसको मैं वीक के एंड में रखूं, so that आपको थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर सेटल होने के लिए मिले, and then we can definitely go ahead with more advanced topic. So that's it from this end. I'm just going ahead and talking about a next topic. Next topic we are talking about is subqueries. And what is subqueries? This is like very simple topic. Very simple topic. Subquery is nothing but query within a query. क्वेरी के अंदर जब हम लोग क्वेरी लिखते हैं तो उसको हम लोग सब क्वेरी कहते हैं. तो सर आपको ये कहना है क्या, आपको इंसर्ट के अंदर अपडेट लिखना है, अपडेट के अंदर डिलीट लिखना है, डिलीट के अंदर सिलेक्ट लिखना है, ऐसा कुछ कहना है क्या? नहीं. व्हेन आई से दैट इन जनरल हम लोग कहते हैं सब क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन क्वेरी. हाउएवर टिपिकली यू अंडरस्टैंड दैट इट वर्क्स विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक सिलेक्ट के अंदर एक सिलेक्ट के अंदर हम लोग जब दूसरा सिलेक्ट लिखते हैं, एक सिलेक्ट के अंदर जब हम लोग दूसरा सिलेक्ट लिखते हैं, देन इट इज समथिंग वी कॉल इट एज अ सब क्वेरी. तो सर हम लोग ऐसा लिखते ही क्यों है? आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट सॉल्व किए थे और कुछ असाइनमेंट में मैंने गलती से ऐड कर दिया था. हेलो, कुछ असाइनमेंट में मैंने गलती से ऐड कर दिए थे सब क्वेरीज के असाइनमेंट. अब कुछ लोगों को आते थे तो उन्होंने सॉल्व कर भी लिए, बट अदरवाइज सब क्वेरीज देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स which becomes very easy to understand with the subqueries. There are certain problems. So what is that? Please note, in subqueries, output of inner query is used as input of the output query, outer queries. So मतलब क्या है? आप लोगों मैथमेटिशियंस हो, आपको बहुत अच्छे से पता है. See, if I'm writing 3 into 2 plus, let's say 2 plus 5, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. आई एम सेइंग दैट दिस इज माय आउटर एक्सप्रेशन, दिस इज माय इनर एक्सप्रेशन. दिस इज माय आउटर एक्सप्रेशन, दिस इज माय इनर एक्सप्रेशन. हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको पता है इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं? पहले इनर वाला सॉल्व करते हैं. यस, फंक्शन विद इन फंक्शन भी हम लोग कह सकते हैं. हम लोग इनर वाला पहले सॉल्व करते हैं. 2 + 5 इज इक्वल टू 7, एंड देन यू फाइंड दैट oh, this answer is like 10. And this is the way you can do it with normal mathematical operation. Something similar अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन कॉल के अंदर आपने वापस से फंक्शन कॉल कभी दिया होगा, इस लेवल का आपने प्रोग्रामिंग किया होगा, तो आपको पता होगा. फॉरगेट तब नहीं किया होगा तो अभी जब डेटाबेसेस में आए थे, डेटाबेस में भी कुछ कुछ असाइनमेंट ऐसे थे कि जहां पर हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन, ऐसे भी कुछ कुछ असाइनमेंट आप लोगों ने किए हुए हैं. आई नो दैट, राइट? सो हाँ, सॉरी, भावनाओं को समझो यार, आप लोग मैथमेटिक्स के पीछे पड़ गए. दिस इज नॉट फेयर. वो मैं भूल गया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था. ओके ओके, हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, मैं आपको बता रहा था कि जब आप लोग ऐसा मैथमेटिक्स में कर सकते हो, जब आप लोग फंक्शंस में कर सकते हो, ऐसा हम लोग पूरी की पूरी क्वेरी में भी कर सकते हैं. और जब हम लोग ऐसा पूरी की पूरी क्वेरी में कर सकते हैं, तब उसको कहते हैं हम लोग सब क्वेरी. इन दिस केस ऑल्सो, इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो आप लोग आउटर क्वेरी में लगाते हो. इनर क्वेरी का जो आउटपुट है तो फिर हम लोग इसमें लगाते हैं. तो सर कोई तो एक आध एग्जाम्पल हो जाए. हाँ, एग्जाम्पल हो जाए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के किसी को समझ में नहीं आता. तो वी विल गो अहेड एंड आई विल टेल यू some of the examples. Don't remember, example wise subquery is quite simple topic. And again, think on a problem statement. Don't think on a solution. Think on a problem statement that find the employee, find the employee with maximum salary. Find the employee with the maximum salary. And you say that, so this is very easy. I can simply say select star from employee where salary
is equal to max salary. Sir, it is very easy. Is it so? Do you believe that this query works? कहने के लिए बहुत आसान लगता है, ओ सैलरी इज इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी. हाउएवर दिस गिव्स यू एरर. व्हाट इज एरर? ग्रुप फंक्शन, a group function cannot be used in where clause, and now that is something problem. So you find that you try to do that, ये आपको बताता है कि this is a invalid use of the group functions and that we have seen it. तो सर कोई आसान सा तरीका है. आसान सा तरीका क्या है मैं दिखा रहा हूं. हैव अ लुक एट दिस. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. ये अटेम्प्ट तो आपका काम से गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड अटेम्प्ट. लिसन केयरफुली. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. लेट मी जस्ट फाइंड आउट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ये जरा चेक करते हैं. आई फाइंड दैट ओ मैक्स सैलरी इज 5000. ओके, दैट इज ग्रेट. प्लीज पे अटेंशन. मैक्स सैलरी इज 5000. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जाता हूं और मैं दूसरा क्वेरी लगाता हूं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज इक्वल टू 5000. a salary is equal to 5000, and now you find that, do you get the result? Yes, absolutely, I get the result. प्लीज नोट, मैंने पहला क्वेरी दिया. पहले क्वेरी के अंदर मैंने मैक्सिमम सैलरी निकाला एंड द मैक्सिमम सैलरी आई फाउंड टू बी लेट्स से 5000. a maximum salary is 5000. when the maximum salary is 5000, I just check that कि वो सैलरी जहां पर मैच हो जाए, सैलरी इज इक्वल टू 5000, only I'm trying to fetch that particular record, and then I found that oh, select star from EMP, this is working very well. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन क्वेरी आई हैव रिटन टू क्वेरीज. ये पहली चीज. और दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने कुछ तो मैन्युअल चेक किया है. यहाँ पर जो 5000 है, वो 5000 मैंने यहाँ के क्वेरी में हार्ड कोडेड देने की कोशिश की है. यहाँ के क्वेरी में मैंने हार्ड कोडेड देने की कोशिश की है. एंड बहुत लोगों को ये अप्रोच अच्छा नहीं लगता. सर दिस इज, आप चीटिंग कर रहे हो, आप वहां से देख के यहाँ पर दे रहे हो. रुको जरा, अगर आपको चीटिंग लगती है, हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं. लिसन केयरफुली. हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं. दूसरा तरीका ये है, प्लीज गो अहेड. सेम थिंग, दिस इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग, बट हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, मैन्युअली कॉपिंग रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेरी इनटू सेकंड क्वेरी. ये आपको थोड़ा सा मैन्युअल काम करना पड़ रहा है. कोई बात नहीं सर, मैन्युअल काम नहीं करना है, ऑटोमेटेड काम करना है. अच्छा चलो मैं ऑटोमेटेड काम करके दिखाता हूं. ये जो आपका सिलेक्ट क्वेरी है, ये जो आपका सिलेक्ट क्वेरी है, उसका रिजल्ट आप लोग किसी तो एक वेरिएबल में ले लो. सो आई एम सेइंग दैट आई एम डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल मैक्स सेल. ए वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स. मैं क्या कह रहा हूं, ये जो क्वेरी है, इसका जो भी रिजल्ट है, यू कलेक्ट इट इन अ वेरिएबल. ओ आई कलेक्टेड इन अ वेरिएबल. प्लीज नोट, ये मेरा यूजर डिफाइंड वेरिएबल है. जो प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं उसके अंदर हम लोग 2 बार @ लगाते हैं. जो प्री डिफाइंड वेरिएबल होते हैं उनके अंदर हम लोग 2 बार @ लगाते हैं. ऑटो कमिट, फॉरेन की चेक्स. सो जहां जहां पर 2 बार @ लगाते हैं वो आपके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं. जहां पर हम लोग एक बार @ लगाते हैं, ये आपका खुद का वेरिएबल है, ये आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल है. अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपका वेरिएबल है, यू कैन चेक दैट सर क्या उसके अंदर वैल्यू आ गई है क्या. 100% इसके अंदर 5000 आ गया है. और ये 5000 अब मैं हार्ड कोडेड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से ले रहा हूं. ये मैं यहां से ले रहा हूं. तो सर इज इट बेटर? यस, दिस इज डेफिनेटली बेटर अप्रोच. दिस इज डेफिनेटली बेटर अप्रोच. आप लोग चेक कर सकते हो, ये 5000 आपके मैक्सेल में आ गया एंड देन यू फाइंड दैट ओ दिस इज स्टिल वर्किंग. अच्छी बात यहां पर क्या है, अच्छी बात यहां पर यह है कि अब मुझको चीजों को हार्ड कोड करने की या मैन्युअल कॉपी करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल यहां पर कम से कम 2 क्वेरीज आपको देने पड़ते हैं. सो अगेन आई एम सेइंग दैट वर्किंग बट टू क्वेरीज आर इन्वॉल्व. सर उससे कोई सिंपल तरीका नहीं है क्या? ओ उससे भी सिंपल तरीका है. प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. उससे भी सिंपल तरीका है. व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज इक्वल टू. और यहां पर सैलरी में आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए. यहां पर आपको मैक्सिमम सैलरी चाहिए. व्हाट यू डू, यू जस्ट गो अहेड, एंड ये जो क्वेरी है जो आपको मैक्सिमम सैलरी दे सकती है, ये जो क्वेरी है जो आपको मैक्सिमम सैलरी दे सकती है, उस क्वेरी को यहां पर डाल दो
and within a single query you are getting the result, और विद इन सिंगल क्वेरी यू आर गेटिंग अ रिजल्ट. बट सर ये करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक बाहर वाले क्वेरी के अंदर हम लोगों ने एक अंदर वाला क्वेरी लगा दिया, एंड दिस इज समथिंग यू कॉल इट इज अ सब क्वेरी. सो दिस इज वर्किंग इन सिंगल क्वेरी एंड दिस इज नथिंग बट योर सब क्वेरी अप्रोच. सो व्हाट इज सब क्वेरी? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आप लोग सब क्वेरी के बिना सॉल्व नहीं कर सकते हो. अगर सब क्वेरी है तो आप लोग या तो मैन्युअली कर सकते हो या फिर खुद के वेरिएबल यूज करके आप लोग उसका डेटा एक वेरिएबल में ले लो और बाद में वो वेरिएबल यहाँ पर डाल के आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फिर एक क्वेरी में नहीं हो रहा है, आपको दो क्वेरीज लिखने पड़ रहे हैं. तो सर मुझको दो क्वेरी नहीं लिखने, मुझको एक ही क्वेरी में किस्सा खत्म करना है. अगर आपको ऐसा करना है then you should go for something called as a subqueries, and this is how it will work. I hope this is clear. You want to try this. This is your first subquery. Please try it at your end first और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. राजेंद्र, subquery का टाइप, डेटा टाइप of that variable will be automatically taken. डेटा टाइप विल बी ऑटोमेटिकली टेकन. अब हमारे केस में इट इज डबल है, सैलरी आपका डबल है, तो इट विल बी टेकिंग ऑटोमेटिकली. And Amit, why it doesn't work for the first query? Because that is the rule of the group function. Group function के जो चार rules आपके स्लाइड में लिखे हुए हैं, you can open the group function का स्लाइड, वहां पर जो चार रूल लिखे हुए हैं उसमें से one of the rule था that group function cannot be used in a where clause. ये आपके group function का बेसिक रूल है, राइट? डायरेक्टली जंप मत करो, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. मैं सारे क्वेरीज लूंगा, आप टेंशन मत लेना. सिर्फ वो मेरे को अभी इमीडिएटली डिमांड मत करना सर वो सेकंड हाईएस्ट दिखाओ, थर्ड हाईएस्ट दिखाओ. हम लोग सब कुछ देखेंगे. जस्ट गिव मी सम टाइम, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. करेंगे करेंगे. अभी 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 तो हमने टॉपिक शुरू किया है. अभी मैंने सिर्फ बोला है कि व्हाट इज सब क्वेरी. इट वाज जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन. सो होल्ड ऑन, टॉपिक खत्म होने दो. उसके बाद में अगर ऐसा कुछ बचा कि सर ये आपने नहीं किया, डेफिनेटली पूछना एट द एंड ऑफ द टॉपिक. तो व्हाट इज सब क्वेरी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी सिंपली मीन्स दैट कि आप लोग एक आउटर क्वेरी लिख रहे हो और आउटर क्वेरी के अंदर हम लोग एक इनर क्वेरी लिख रहे हैं. हम लोग आउटर क्वेरी लिख रहे हैं और आउटर क्वेरी के अंदर हम लोग इनर क्वेरी लिख रहे हैं. तो जो कुछ भी रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी है, जो कुछ भी रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी है, वो हमको आउटर क्वेरी में देना है. रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी वी वांट टू गिव इट इन द आउटर क्वेरी. इसको हम लोग कहते हैं सब क्वेरी अप्रोच. तो सर अगर हमारे पास सब क्वेरी नहीं होते तो हम लोग कैसे करते हैं? सब क्वेरी नहीं होते तो हम लोग शायद ऐसे कर सकते थे. क्या? क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हम लोग किसी ना किसी वेरिएबल में ले लेते और बाद में जो वेरिएबल में लेते फिर हम लोग उसको दूसरे क्वेरी में दे सकते थे. इसमें भी कोई बुराई नहीं है. ओनली प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर आपको दो दो क्वेरीज लिखने पड़ रहे हैं. लेकिन कुछ कुछ लोगों का होता है नहीं सर एक क्वेरी में खत्म होना चाहिए. अगर एक क्वेरी में खत्म होना चाहिए तो ये आंसर आपके सामने, ये आंसर आपके सामने, राइट? मैं दूसरा प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ. फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड. आई एम गोइंग फॉर अ सेकंड प्रॉब्लम एंड लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दैट स्टेप बाय स्टेप. अगेन जब आप लोग बिगिनर्स हो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट बिगिनर्स हो तो जंप मत मारो. वहां पर हम लोग स्लोली जाएंगे. एक बार आपको बेसिक समझ में आ गए फिर हम लोग करेंगे, डोंट वरी. सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड. द सेकंड प्रॉब्लम, लिसन द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज फाइंड फाइंड ऑल एम्प्लॉइज, फाइंड ऑल एम्प्लॉइज मैंने कहा एम्प्लॉइज whose salary is more than, salary is more than average salary, average average salary of all employees. Find all employees whose salary is more than average salary of all employees. How this can be done? Let us go ahead. Let us solve it using variable first. How I can do that? I can write a variable, let's say average salary.
and I can apply select average of sal from EMP. यहाँ पर मुझको सबका एवरेज सैलरी मिल जाएगा, और एक बार मुझको एवरेज सैलरी मिल गया, देन अगेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट select star from employee, select star from employee where salary is greater than average salary. Can I solve it like this? Absolutely. These are again two queries approach that I am following, and yes, these are all employees whose salary is more than definitely average salary of the employees. So what is average salary of the employees? If you want to check that, you can always try to print that. No problem. AVG cell, no issues. Select @avg cell. So 2073 से ज्यादा जितने सारे employees है ये आपको दिख रहे हैं. Okay, that is good. I'm going one more step ahead. Please pay attention. I'm going one more step ahead. Going one more step ahead. सर मुझको ये एक क्वेरी में करना है. अगर आपको एक क्वेरी में करना है तो कैसे कर सकते हैं? इट इज इक्वली सिंपल. सो आई एम सेइंग दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी. यहां पर एवरेज सैलरी मुझको वेरिएबल में नहीं लेना है, रादर मुझको ये रन टाइम पे कैलकुलेट करना है. तो आप लोग कर सकते हो. हाउ यू कैन डू दैट? यू गो अहेड एंड राइट सिलेक्ट एवरेज सैलरी from employee. Select average salary from employee. I'm taking this, and again it is giving me the same result. You can go ahead, you can try that. Yes, definitely there's nothing fancy about that. ये आप लोग कर सकते हो. इसलिए मैंने आपको कहा कि we will try to go step by step and we will try to solve the problem step by step. चलो, you can try that quickly and then I will show you something more complicated. अब maximum salary हो गया, greater than average salary हो गया, कॉमन सेंस है, मिनिमम सैलरी भी आप लोग ऐसे ही निकालोगे. दैट इज प्रीटी सिंपल. आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम. तो लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड. नाउ व्हाट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? मोर कॉम्प्लिकेटेड इज, लेट्स गो अहेड, फाइंड एम्प्लॉइज with second highest salary. Find employees with second highest salary in company. Find employees with the second highest salary. So let us go ahead. Yes, Komal, sure. I'm going ahead. Select second highest salary कौन सी है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं. Select star from EMP, order by sal descending. Order by sal descending. You go ahead and now you find that second highest salary is nothing but this person. आप लोग नोट किया है यहाँ पर एक गड़बड़ है. यहाँ पर गड़बड़ क्या है? यहाँ पर गड़बड़ क्या है? हाँ, लिमिट हम लोग करेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इसमें गड़बड़ है. गड़बड़ आप लोग नोट किए कि यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले दो एम्प्लॉइज हैं. सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले दो एम्प्लॉइज है. तो यहाँ पर स्कॉट एंड फोर्ड, अगर मैं सिर्फ स्कॉट को दिखाता हूं तो डोंट यू थिंक दैट इट इज इनजस्टिस विद फोर्ड? अगर मैं सिर्फ फोर्ड को दिखाता हूं देन देयर इज इनजस्टिस विद द स्कॉट. ओह, तो क्या करेंगे? पहले तो मैं दिखा रहा हूं कि जो हम लोग रेगुलर अप्रोच से करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम जिस अप्रोच से आप लोगों ने किया था उसका पहले प्रॉब्लम देखते हैं. व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग. आई एम सेइंग दैट limit 1 comma 1. This is okay, this will give you the output, but this is not showing food. This is not showing food. तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? This is will not show all employees having second highest salary, and this is something troublesome. तो एक काम करते हैं, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट. तो सर यहाँ पर सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए? सबसे पहले हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी ढूंढनी चाहिए. सेकंड हाईएस्ट सैलरी ढूंढना पहले इंपॉर्टेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉइज ढूंढना ये सेकेंडरी जॉब है. तो सबसे पहले ढूंढते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी. हाउ आई कैन डू दैट? सिलेक्ट सैलरी. हाउ लुक एट दिस. सिलेक्ट सैलरी from EMP. I'll go ahead. I'll say select distinct salary from EMP, order by
order by sal in descending order. Order by sal in a descending order. Now you check that. Now it is saying that it is not showing me all the employees. Please pay attention. It is not showing me all. हमारे पास total employees है 14. Total employees है 14. लेकिन यहाँ पर मेरे को salaries दिखा रहा है सिर्फ 12. क्यों? क्योंकि जो 3000 जो duplicated था वो एक ही बार आया है, और शायद आई गेस 1250 या कोई तो और भी है जो डुप्लीकेटेड था वो भी एक ही बार आया है. एंड सिंस दे आर लाइक ओनली वंस, सिंस दे आर ओनली वंस, दे आर गोइंग गुड. तो सर अब क्या किया जाए? अब मैं क्या कह रहा हूं, नाउ दीज आर यूनिक. इफ दे आर यूनिक, इसमें से हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी उठा सकते हैं बाय यूजिंग लिमिट क्लॉज. इसमें से हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी उठा सकते हैं करेक्टली बाय यूजिंग अ लिमिट क्लॉज. तो आई एम जस्ट गोइंग अहेड राइटिंग लिमिट 1,1. limit 1,1, this is giving me the second highest salary. Limit 1,1, this is giving me the second highest salary. चलो सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल गई. अब क्या इरादा है? मैं कह रहा हूं ये सैलरी हम लोग कहीं पर तो एक वेरिएबल में ले लेते हैं. सेट at the rate, let's say I'm saying that, let's say sal2 whatever, sal2 I'm taking it in a variable, and once I'm taking in a variable, definitely now I can say that select star from emp where salary is equal to at the rate sal2. Okay, that is great. Now will it show me both? Yes, now it will show you both Scott as well as Ford. Now it will show you both Scott as well as Ford. I hope now you are happy. ये दोनों आ गए. मैंने सैलरी आई हैव जस्ट टेकन द डिस्टिंक्ट सैलरी, सो मुझको सैलरी मिल गई, और उस सैलरी को मैच होने वाले जितने एम्प्लॉइज थे, अगर 2 होंगे तो 2, 4 होंगे तो 4, 10 होंगे तो 10, हम लोग सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा. सो आई एम गोइंग वंस अगेन, प्लीज मेक अ नोट. मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट आप लोग प्लीज पे अटेंशन द वे आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप. आप लोग डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर जंप करोगे, यू विल फाइंड द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. Please don't look at the result, look at the process. Look at the process. And I was trying to tell you the problem. The problem was, यहाँ पर जब हम लोग ऐसे एम्प्लॉयज देख रहे थे कि लिमिट 1,1, इसमें गलत नहीं है लेकिन ये गड़बड़ है. गड़बड़ ये है, अगर 3000 सैलरी की अगर 2 एम्प्लॉय है तो आपको 2 नहीं आ रहे, आपको एक ही एम्प्लॉय आ रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो मेरा सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि मैं डिस्टिंक्ट सैलरी, सॉरी, सबसे पहला काम ये है कि मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी ढूंढूं. सो हाउ डू आई फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी? सो टू फाइंड आउट सेकंड हाईएस्ट सैलरी, नील आप ये एज्यूम करके चल रहे हो क्या कि आपके कंपनी में 2 ही एम्प्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी 3000 होगी? इन रियल वर्ल्ड एक कंपनी में ऐसे 10 एम्प्लॉइज हो सकते हैं जिनकी सैलरी 3000 होगी. इसके ऊपर भी मेरे को किसी ने तो ऑलरेडी पोस्ट किया था. प्लीज अंडरस्टैंड दैट हम लोग सिर्फ इस डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग सोच रहे हैं. एंड रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, देयर कैन बी 2 एम्प्लॉइज, देयर कैन बी 200 एम्प्लॉइज हैविंग सेम सैलरी. करेक्ट? सो आप लोग वहां पर हार्ड कोड नहीं कर सकते सर एक स्किप करो और अगले 2 चेक करो. सो दैट इज नॉट यू वांट टू डू. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. करेक्ट? सो हम लोग पहले ये देखते हैं, एंड दैट इज द रीजन. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द आंसर्स. यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. कभी कभी क्या हो जाता है, आंसर तो आ जाता है, आंसर तो आ जाता है, लेकिन बहुत बार आपका क्वेरी भी गलत हो जाता है. सो प्लीज मेक नोट ऑफ दैट. मैं कहां पर था? मैं आपको बता रहा था सिलेक्ट स्टार. अब ऐसे वक्त में मुझको क्या करना चाहिए? तो मैं सोच रहा हूं लेट मी गेट डिस्टिंक्ट सैलरी, ए डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. इफ आई से डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास 2 सैलरीज डबल है, आपके 2 सैलरीज डबल है. वेरी गुड. तो जो 2 सैलरीज डबल है कौन कौन से? एक 1250 और 3000. जो 2 सैलरीज डबल है वो 2 सैलरीज आप लोग यहाँ पर बाहर निकाल सकते हो. एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर 14 एम्प्लॉय होने के बाद में भी यहाँ पर सिर्फ 12 ही रोज आए. ओके, नो प्रॉब्लम. तो अब मुझको क्या चाहिए? मुझको उसमें से सेकंड हाईएस्ट चाहिए. ये सेकंड हाईएस्ट मुझको किससे मिलेगा? पहले तो मैं इसको ऑर्डर बाय करता हूँ. ऑर्डर बाय सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने से ऑर्डर बाय सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मुझको ये सारे मिल गए, but at the same time they are in a descending order. Okay, I'm happy that they are in a descending order. लेकिन मुझको उसमें से कौन सा चाहिए? मुझको इसमें से सेकंड हाईएस्ट चाहिए. हाउ डू आई गेट द सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट मिलने के लिए आई कैन गो देयर, आई कैन से
लिमिट 1,1 एंड दिस विल गिव मी, पहला एक स्किप कर दो, पहला एक स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो और फिर उसके नीचे का एक सिलेक्ट करो, राइट? सो वी हैव डन दैट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर इज वेरी सिंपल। एक काम करते हैं, इसका आउटपुट एक वेरिएबल में लेते हैं, इसका आउटपुट एक वेरिएबल में लेते हैं। एवरेज 2 is equal to this and I have taken output in a variable, and once I have taken it in a variable, now I can apply the where clause. Now I can apply the where clause where salary is equal to whatever, a variable का नाम आपने जो लिखा होगा वो फॉलो करो, and then it will give you the correct result. However, wait for a minute, ये आपका एक क्वेरी में आया हुआ रिजल्ट नहीं है, ये आपका दो क्वेरीज में आया हुआ रिजल्ट है। सर इसको हम लोग एक क्वेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 100% हम इसको एक क्वेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये मेरी क्वेरी है, ये मेरी क्वेरी है, और यहाँ पर मुझको एवरेज टू नहीं चाहिए, यहाँ पर मेरे को एवरेज टू नहीं चाहिए, रेदर एवरेज टू जिस क्वेरी का रिजल्ट है, एवरेज टू जिस क्वेरी का रिजल्ट है उस क्वेरी को ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड इफ आई डू दैट देन दिस विल गिव मी द करेक्ट रिजल्ट, this will give me the correct result. This is how we can solve the problem using subqueries. I hope you have got the idea what is subquery and how we can write subquery. Got it? Okay, that is great. Now we can take a break. तब तक people who want to take a break, you take a break. तब तक मैं अमित का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अमित का क्वेश्चन है, लिमिट की वजह से एक ही दिखना चाहिए। प्लीज नोट, एवरेज टू में एक ही है। अमित गो एंड चेक, एवरेज टू के अंदर एक ही है, सिलेक्ट एट द रेट एवीजी टू, वहां पर दो आए नहीं है, वहां पर एक ही आया हुआ है, एंड दैट इज नथिंग बट 3000। सो देयर इज ओनली वन इन एवीजी टू। यहां पर हमने क्या किया है, सैलरी इज इक्वल टू एवीजी टू, ये एवीजी टू यहाँ पर जो एक ही आया है तो उसका रिजल्ट कितना है, 3000 है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो वेयर क्लॉज लगाया है, दैट वेयर क्लॉज इज सैलरी इज इक्वल टू 3000, और सैलरी इज इक्वल टू 3000 वाले हमारे पास दो एम्प्लॉइज है, सैलरी इज इक्वल टू 3000 वाले हमारे पास दो एम्प्लॉइज है, तो हमारे वेयर क्लॉज के ऊपर काम हो रहा है। आई होप अमित दैट इज क्लियर नाउ। कौन है? जानवी। जानवी सेइंग दैट विदाउट डिस्टिंग भी आ रहा है। सो जानवी go ahead, why don't you find third highest salary as well, check for third highest salary as well, करेक्ट? चलो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, आप लोग इसको करके देखो, आई होप इट इज वर्किंग। ब्रेक के बाद में देखते हैं उन जानवी का कुछ प्रॉब्लम है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? तब तक आप लोग उसको करके देखो जो कुछ भी हुआ है। So we were talking about subqueries, and now you understand that subquery is quite easy at times. All we are doing is that result of one query, we want to give it as an input of another query. You call it a subquery. So just now I have given you three example, that employee with the maximum salary, employee with let's say average salary, and on the similar line, employee with the second highest salary. If you are at all looking for employee with third highest salary or employee with the second lowest salary, if you want to do that, I guess that should be not that complicated. If you are finding a third highest salary, how do you do that? That should be like equally easy. All I'm doing is that अब मैं directly query लिख रहा हूँ, directly query लिख रहा हूँ। I'm simply saying that skip 2 and then get 1. It skip 2 and get 1, that is giving me my third highest salary. If that is giving me third highest salary, you check that oh, third highest salary is nothing but 2975. The highest salary is 5000, second highest salary is 3000, और उसके नीचे का जो सैलरी है it is 2975, it is 2975. I am going ahead. अब उसके आगे what is this,
ओ दिस सैलरी इज नथिंग बट ये 2975 ये जोन्स की सैलरी है हु इज वर्किंग एज ए मैनेजर. सो थर्ड हाईएस्ट, अब आपको लॉजिक पता चल गया. अब लो थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, नाइन्थ हाईएस्ट, आपको जैसे निकालना है वैसे लिखो. जब अगर आप लोग हाईएस्ट निकाल सकते हो तो कॉमन सेंस है आप लोग लोएस्ट भी निकाल सकते हो. तो कोई मुझे बताएगा हाउ डू फाइंड आउट द थर्ड लोएस्ट सैलरी? क्या करना पड़ेगा? हाउ डू आई गेट थर्ड लोएस्ट सैलरी? What is the logic to be done? Yes, only instead of descending sort, you change it to the ascending sort. And moment you change it to the ascending sort, now you find that it is a third lowest salary. Yes, second highest salary, third lowest salary. This is something very commonly asked interview questions. I repeat once again. Third highest salary nikalo, fourth highest salary nikalo. Now these are very commonly asked interview questions, and that is the reason it is worth that you know कि these are, अगर आपको rightly calculate करना है तो वहां पर आपको सब क्वेरी डालना पड़ेगा. विदाउट सब क्वेरी आप लोगों ने नोट किया था कि कुछ कुछ एम्प्लॉय आपके मिस हो सकते थे या फिर आपको रिजल्ट गलत आ सकता था. बट दिस इज अ टाइम वेयर राइटिंग सब क्वेरी इज मैंडेटरी. बाय द वे बाय द वे ये सब क्वेरीज एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन. How subqueries are executed? Performance point of view, I have got this question. Listen carefully. How subqueries are executed? आप लोगों ने नोट किया होगा ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. आपके पास टोटल एम्प्लॉयज कितने? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आपके पास टोटल एम्प्लॉयज कितने? यस, 14 एम्प्लॉयज आर देयर. सो अगर आपके पास 14 एम्प्लॉयज है तो आपका वेयर क्लॉज कितनी बार रन होगा? आपका 14 एम्प्लॉयज है तो आपका वेयर क्लॉज ऑब्वियसली 14 बार टाइम रन होगा. और जब मेरा वेयर क्लॉज 14 टाइम रन होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट even subquery is executed for 14 times. So point that I want to make it is that subquery is executed once for each row of the outer query. मेरा जो आउटर क्वेरी है, आउटर क्वेरी में जितने सारे रोज है, हर एक रो के लिए सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है. फिर से एक बार, मेरा जो आउटर क्वेरी है, आउटर क्वेरी के हर एक रो के लिए मेरा सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. यू कैन टेक अ लुक एट सब क्वेरी. What I'm saying is that if no optimization is enabled, if no optimization is enabled for each row of the outer query result, subquery is executed once. And obviously, this will reduce the performance of subquery. Please understand. तो बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि सब क्वेरीज आर स्लोअर, एंड अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, सब क्वेरीज आर स्लोअर. सो इंटरव्यू का ये फेमस क्वेश्चन होता है, सब क्वेरीज फास्ट है या स्लो है और समथिंग लाइक दैट. आई एम सेइंग दैट ये सब क्वेरीज आर स्लोअर, लेकिन मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाया है. इस इफ कंडीशन को प्लीज मत भूलना. एंड व्हाट इफ कंडीशन आई एम सेइंग if no optimization is enabled, in that case I say that subqueries will be slower. लेकिन आजकल के बहुत सारे डेटाबेसेस है, एंड these databases are super optimized databases. they are really good databases. so वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाते हैं कि सब क्वेरी का जो रिजल्ट है उसको काइंड ऑफ कैश करके रखते हैं. एंड सिंस सब क्वेरी का रिजल्ट वो कैश करके रखते हैं, देयर likely chances are that sub queries may execute faster. So if anyone is asking you question, sub query is faster, sub query is slower, definitely you can say that theoretically subquery is slower. I repeat, theoretically subquery is slower, and at that time you can put that condition if no optimization is enabled, then subqueries will be slower, right? Going ahead. अभी तक आप लोगों ने जितने सारे सबक्वेरी पढ़े थे, अभी तक जितने सारे सबक्वेरी पढ़े थे, all those subqueries were single row subqueries. All those subqueries were single row subqueries. Single row subquery means what? Your subquery returns single row. Subquery subquery returns a single row. आप लोगों ने जितने सारे सबक्वेरीज ट्राई किए थे, जितने सारे आपके इनर क्वेरीज थे, प्लीज गो बैक एंड चेक. ये क्वेरी यहाँ पर मैंने इनर क्वेरी लिखा है. ये जो मेरा इनर क्वेरी है, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी, इट इज माई इनर क्वेरी इज गोइंग टू रिटर्न मी अ सिंगल रो. यू कैन ट्राई आउट ओवर हेयर. ये जो आपका इनर क्वेरी है, यहाँ पर मैंने इनर क्वेरी रन किया था, दैट इज रिटर्निंग मी अ सिंगल रो. ओके, यू कैन ट्राई आउट दिस एज वेल. यहाँ पर हम लोग कहीं पर कुछ तो एवरेज वगैरह निकाल रहे थे, right? So even that was returning me
सिंगल रो। सो जहां जहां पर आप लोगों ने अभी तक सब क्वेरी लिखा था, हर एक सब क्वेरी मुझको सिंगल रो रिटर्न कर रहा था, हर एक सब क्वेरी मुझको सिंगल रो रिटर्न कर रहा था। एंड ऑब्वियसली दैट इज द रीजन यहां पर ये जो भी क्वेरीज अभी मैंने आपको बताया, जो भी क्वेरीज अभी मैंने आपको बताया, ऑल दोज क्वेरीज आर नथिंग बट यू कॉल इट एज अ सिंगल रो सब क्वेरीज, सिंगल रो सब क्वेरीज, सब क्वेरीज। ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड, लिसन केयरफुली। अब मुझको कुछ और निकालना है, मुझको कुछ और सॉल्व करना है। अब मेरा एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लिसन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, but it is interesting problem statement. Take a look at this. The problem statement is find all employees, find all employees whose salary is more than any manager. What I'm saying is that I'm looking for all employees whose salary is more than any manager. At the same time, I have got one more problem statement. Find all employees whose salary is more than all managers. Please note, मैंने यहाँ पर दो अलग अलग चीजें कंसिडर की है. One thing I'm saying that find all employees whose salary is more than any manager is one. Second one, I'm saying that find all employees whose salary is more than all the managers. All the managers, जितने managers है उन सबसे ज्यादा. सर ये मुझको कैसे सॉल्व होगा? वेट फॉर अ मिनट, बिफोर यू सॉल्व दैट, पहले आप लोग ये क्यों नहीं ढूंढ लेते कि आपके मैनेजर्स की सैलरी है कितनी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, where job is equal to manager, and you find that, have a look at this. Oh, these are the managers. Please note that यहां पर आपका एक मैनेजर है 2975 वाला, एक मैनेजर है 2850 वाला, एक मैनेजर है 2450 वाला। ए व्हाट दिस विल गिव यू? अगर मैं कह रहा हूं कि मुझको मुझको ये चाहिए, फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन एनी मैनेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? I want to find out all employees whose salary is more than any manager. What I need to do? Obviously, इसमें से जो मिनिमम सैलरी वाला मैनेजर है, प्लीज पे अटेंशन, इसमें से जो मिनिमम सैलरी वाला मैनेजर है उसके ऊपर के आपको सारे ढूंढने। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर से एक बार, जो मिनिमम सैलरी वाला मैनेजर है उसके ऊपर के जितने सारे उतने सारे आपको ढूंढने। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं आपको एक अप्रोच दिखा रहा हूं। सिलेक्ट select minimum salary from employee where job is manager, and this will give me salary somewhere 2450, a 2450। अब मैं क्या कह रहा हूं कि let me find out all such employees, let me find out all such employees where salary is greater than, where salary is greater than all of this, where salary is greater than all of this। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? Please note, oh, I found that these are the president and analyst and then other managers. I'm finding that these are all who have got a salary more than any manager, greater than any manager. But रुको, if I'm looking for the second problem, then I'm saying that find all employees whose salary is greater than, is more than all managers. ये यहाँ पर सारे मैनेजर्स की सैलरी में एक बार आपको दिखा दो फिर से एक बार। ओ इट इज देयर। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझको सारे मैनेजर से ज्यादा सैलरी होने वाले लोग चाहिए। तो मुझको बेसिकली किसको ढूंढ रहा हूं मैं? ऑब्वियसली यहां पर मैक्सिमम सैलरी किसका है? 2975। तो मैं इससे ज्यादा वाले जितने होंगे मैं उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट, ये ज्यादा वाला कौन सा है? वो 29 वाला कोई तो है। सो लेट मी जस्ट गो बैक एंड लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दैट कि जितने मैनेजर्स मेरे पास है उसमें से पहले तो मैं मैक्स निकालता हूं। तो आई गॉट मैक्स। अब मुझको क्या चाहिए? आई वांट टू फाइंड आउट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सैलरी, a salary is greater than maximum salary, and here I find that, oh, these are two analysts and one president. These are two analysts and one president. That is what my answer. However, ये जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है
कोई मुझे बताएगा ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है ये मैंने कैसे सॉल्व किया है? ये जो क्वेरी है, सब क्वेरी है, ये कौन सी सब क्वेरी कौन से कैटेगरी की है? सो दिस इज सॉल्व्ड, दिस इज solution using single row subquery. You agree? Single row subquery. This is a solution of single row subquery. क्योंकि ये जो आपका subquery है, ये subquery is going to return you a single row. Here, this is also the solution using single row subquery. क्योंकि यहाँ पर भी जो subquery है, it is again returning me the single row. मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग इससे बेटर नहीं कर सकते थे क्या? ये वापस से सोचना पड़ता है यार, मिनिमम लू या मैक्सिमम लू, और फिर वापस से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे और कोई आसान तरीका है? हाँ, मेरे पास आसान तरीका है। हैव लुक एट दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लेट मी फाइंड आउट सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। ए प्लीज नोट, मैं नया सॉल्यूशन बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन नाउ। यहां पर मुझको क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। बाय द वे, अगर मैं इस क्वेरी को कंसिडर करूं, इज इट अ सिंगल रो क्वेरी? ये सिंगल रो है क्या? नहीं, ये मल्टी रो है। ये रिजल्ट जो मुझको दे रहा है, इट इज नॉट अ सिंगल रो रिजल्ट, इट इज अ मल्टी रो रिजल्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, हैव अ लुक एट दिस। लेट मी गो अहेड, लेट मी ट्राई टू से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, select star from employee where salary is greater than, a salary is greater than। तो सर मैं ये पूरा का पूरा जो क्वेरी है जहां पर मेरे को मल्टीपल आ रहे हैं, क्या मैं इसको सब क्वेरी में नहीं डाल सकता? नहीं डाल सकते हो। इफ यू ट्राई टू डू दैट, इट इज एरर। वो कह रहा है कि आपका ये जो सब क्वेरी है, इट इज रिटर्निंग मोर देन वन रो। योर सब क्वेरी इज रिटर्निंग मोर देन वन रो, एंड इट इज कॉमन सेंस। एक सैलरी को कंपेयर करने के लिए आपके पास यहां से आने वाली भी एक ही सैलरी होनी चाहिए। अगर एक ही सैलरी होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू है, राइट हैंड साइड में तीन वैल्यूज है। आई होप आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा है कि ग्रेटर देन साइन में लेफ्ट साइड में एक वैल्यू, राइट हैंड साइड में थ्री वैल्यूज, ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हो। बट कॉमन सेंस। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है फाइंड ऑल एम्प्लॉइज whose salary is more than any manager. If you are saying that, please watch, please watch. Find what is that? Find all employees whose salary is more than any manager. Any, that's it. And moment I use any keyword, this is working fantastic. Please note, it is still producing the same result. This is still producing the same result. और ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है, इसको मैं कहूंगा सॉल्यूशन यूजिंग मल्टी रो सब क्वेरी। दिस सॉल्यूशन यूजिंग मल्टी रो सब क्वेरी। वेट फॉर अ मिनट। तो सर ये आपने एनी के लिए किया, ऑल को बुरा लग रहा है? अच्छा, ऑल को बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं है। फिर से एक बार, दिस सब क्वेरी इज गोइंग टू रिटर्न मी थ्री वैल्यूज। ओ, दिस सब क्वेरी इज गोइंग टू रिटर्न मी थ्री वैल्यूज। अब मुझको क्या चाहिए? मुझको क्या चाहिए? I want to find out the employees. I want to find out the employees whose salary is greater than not any of this value. I want to find out all employees whose salary is greater than all of these. I want to find out employees whose salary is greater than all of these, and there you find that, oh, it is again producing the same result. तो सर ये क्या है? This is again a solution using multi-row subquery. फिर से एक बार, व्हाट इज सिंगल रो सब क्वेरी? सिंगल रो सब क्वेरी वो होता है, सिंगल रो सब क्वेरी वो होता है जहां पर आपका इनर क्वेरी एक ही रिजल्ट रिटर्न करे। मल्टी रो सब क्वेरी वो होता है जहां पर आपके साथ मल्टीपल रोज रिटर्न करें। ऑब्वियसली सिंगल रो सब क्वेरी हम लोग डायरेक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन में यूज कर सकते हैं। मल्टी रो सब क्वेरी हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहां पर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक वैल्यू है, राइट हैंड साइड में आपके पास इतने वैल्यूज है। तो सर ऐसे वक्त में क्या किया जाता है? ऐसे वक्त में डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू यूज कीवर्ड, either any keyword or all keyword. So these are two keywords that can be used
These are two operators which can be used with the subqueries. And what is that key? What is the meaning of this? When I say that select star from EMP where salary is greater than any of these. When I say any of these मतलब आपकी हर एक सैलरी, लिसन केयरफुली, यहां पर वापस से सब क्वेरी आपका कितनी बार रन होने वाला है? अगर मेरे पास 14 रोज है तो मेरी सब क्वेरी 14 बार रन होने वाली है, 14 बार रन होने वाली है। अब वो क्या करता है? हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उठाता है, प्लीज पे अटेंशन, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उठाता है और वो चेक करता है ये सैलरी, ये जो तीन वैल्यूज आ रहे हैं तीनों में से किसी से भी ग्रेटर है क्या? किसी भी एक से ग्रेटर है, ही इज हैप्पी। करेक्ट? कंटिन्यू फर्दर। सेकंड, फिर सेकंड एम्प्लॉय उठाता है, फिर सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी, ये जो तीन वैल्यूज आ रहे हैं इन तीनों में से किसी से भी ग्रेटर है क्या? अगर है तो फिर वापस से उसको भी ले लेता है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। डोंट वरी, इट्स ओके। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। प्लीज पे अटेंशन, इट इज देयर। मैं आपको एग्जीक्यूशन बता रहा हूं, ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, प्लीज पे अटेंशन, ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अब वो क्या कर रहा है, इसमें से पहला एम्प्लॉय उठा रहा है, इसकी सैलरी लेकर आ रहा है 8,000। इट इज कंपेयरिंग 8,000 विथ ऑल दिस थ्री, तीनों में से किसी से भी ग्रेटर है क्या? अगर किसी से भी ग्रेटर है वो आगे जा रहा है। अभी यहां पर एक से भी ग्रेटर नहीं है, यू लिव दैट। फिर दूसरा एम्प्लॉय, ये फिर दूसरे एम्प्लॉय को पिकअप करता है, इसकी सैलरी इज इट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस थ्री? सॉरी, इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस थ्री, इसको भी छोड़ देता है। फिर से एक बार, तीसरा एम्प्लॉय, इसकी सैलरी इज इट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस? अगेन इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस, इसको भी स्किप करता है। यू कंटिन्यू फर्दर, इसकी सैलरी 2975 एंड 2975 इज इट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस? एंड इट फाउंड दैट अगर उसको किसी भी एक से अगर ग्रेटर मिल जाती है देन इट सेज दैट चलो इसको पिकअप करना है, इसको सिलेक्ट करना है, उसको आगे लेके जाता है। ओके, कंटिन्यूड फर्दर, समथिंग सिमिलर। फिर अगला रिकॉर्ड 1250, अगेन इस क्वेरी को रन करता है, इसका आउटपुट चेक करता है, ए 1250 इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस वैल्यू। सिंस इट इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस वैल्यू, इसको स्किप कर देता है। और एक हाथ दिखाता हूं, यू पिक अप द नेक्स्ट वन 2850, ए 2850 इज इट ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस? इससे नहीं है, इससे नहीं है, बट यस इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सिंस इट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इट इज अगेन कंसिडर्ड एंड कंटिन्यूड फर्दर। तो मैं ये बता रहा हूं, इफ इट इज ग्रेटर देन एनी वन वैल्यू out of the multiple results given by subquery, then it will work, then it will work। इसको कहा जाता है any। so what about all? what about all? all कहां पर पिक्चर में आता है? all तब, all जब आप लोग लिखते हो, इन दैट केस, ये मैं ये वाला क्वेरी बता रहा था, all के केस में क्या होता है? वापस से वही लॉजिक होता है, वापस से वही लॉजिक होता है। इट इज चेकिंग, सपोज दैट यू आर टेकिंग अ वैल्यू लाइक दिस 1250, इट इज कंपेयरिंग विद दिस, इज इट ग्रेटर? इट फाइंड दैट पहले ही ग्रेटर नहीं है, छोड़ देता है। फिर वो आगे बढ़ रहा है, चेक कर रहा है, ओ इज इट ग्रेटर 2450, ये चेक कर रहा है, यार ये पहला ही ग्रेटर नहीं है, छोड़ देता है। फिर वो आगे बढ़ रहा है, इट इज फाइंड दैट 3000 एंड 3000, इट इज सेइंग दैट ओ इट इज ग्रेटर देन दिस, yes it is greater than this, it is greater than this, yes it is greater than this, is it greater than this, yes it is greater than this। now since it is greater than all three, since it is greater than all three, now that value, ये जो आपका स्कॉट है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको डिस्प्ले किया जाएगा on the parallel line। I tried once more, one next one is what is it? 5000। now 5000 is greater than this, 5000 is greater than this, 5000 is greater than this। since 5000 is greater than all these values, since 5000 is greater than all these values, so again it is shortlisted and then it is also displayed। so जो greater than all of these है, मतलब वो हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर किए जाते हैं। if it is greater than all three values, then and only then it will be displayed, that is nothing but the all keyword। और ये all keyword और any keyword हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? आपको इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, अगर आपको चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टी रो सब क्वेरीज, देन यू गो फॉर ऑल कीवर्ड और एनी कीवर्ड, all keyword or any keyword। I hope now you understood it।
निखिल, योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. चलो आप लोग ट्राई करके देखो. द टॉपिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वाज मल्टी रो सब क्वेरी. Go ahead. Yes. यहाँ पर आपका जो all है, all is like logical and your any is like logical or. Like मैंने कहा, सेम नहीं कहा. All is similar behavior wise. All is similar to the logical and your any is similar to the logical or. Yes, we can use all and any. मैंने अभी आपको बताया, it can be used for equal to, it can be used for not equal to, it can be used for less than, it can be used for greater than. तो आप लोग all और any किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो. आप लोग all और any किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो. दैट इज फॉर श्योर. सार्थक, इट शुड नॉट डिस्प्ले मैनेजर सैलरी. अगर आपको ऐसा चाहिए, प्लीज नोट दैट व्हाई इट शुड नॉट शो. आपने रिक्वायरमेंट बोला था डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज. यू आर नॉट सेइंग दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज एक्सक्लूडिंग मैनेजर. सार्थक, एवरी मैनेजर इज एम्प्लॉय, करेक्ट. इफ यू हैव गॉट दैट रिक्वायरमेंट, प्लीज गो अहेड, पुट अ वेयर क्लॉज में और एक लॉजिकल एंड लगाओ, एंड जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर. ये आप लोग कर सकते हो. आई होप सार्थक यू गॉट दैट. आप लोग एक्स्ट्रा लॉजिकल एंड लगा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है. आई एम होपिंग कि आप लोग इसको करके देख रहे हो. मल्टी रो सब क्वेरी. वैसे टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक आसान ही है, लेकिन यस इट इज बिट डिफरेंट. इन MySQL, all keyword and any keyword works only with मल्टी रो सब क्वेरीज. ओरेकल जैसे डेटाबेसेस है, वहां पर वो और भी जगह पे यूज होता है. दैट आई नो. गुड. मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूंगा. एक और एग्जांपल है, एंड आई वांट यू पीपल टू ट्राई दैट एग्जांपल एज वेल. I want you people to try that example as well. What is my next query? Multi-row subquery का ही example है, kind of. I'm saying that find all departments which contain some employee. Which contain some employee in the sense which contain at least one employee. See, my requirement is that मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं जिन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट एक एम्प्लॉय है. मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाना है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एम्प्लॉय है. कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो ऑब्वियसली जो क्वेरी है, मुझको फाइंड ऑल डिपार्टमेंट, मतलब मुझको क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट के ऊपर लगानी है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूं कि उसके अंदर कोई ना कोई तो एम्प्लॉय है. ये मुझको जानना है. सर ये मैं कैसे जान सकता हूं? इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. हैव अ लुक एट दिस. मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, आप लोग टेंशन मत लेना. Let me first of all find out. Select DPTNO from EMP. And when I say select DPTNO from EMP, यहां पर मुझको पता चल रहा है कि these are the departments in which there are employees. These are the departments in which there are employees. These are the departments there are employees. अब मैं क्या कह रहा हूं? I'm going ahead. Select star from DPT where department number is equal to a department number is equal to. आप लोग मुझको बताना यहां पर कैन आई डायरेक्टली राइट लाइक दिस? इज इट अलाउड? Obviously this query is going to return 14 different rows. It is going to return 14 different rows, so obviously it is not. तो कोई मुझको बताएगा यहां पर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूं? शुड आई यूज एनी ऑपरेटर और शुड आई यूज ऑल ऑपरेटर? Obviously
मेरा जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये एक डिपार्टमेंट नंबर सबके साथ इक्वल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आई एम सेइंग दैट माय डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर from employees. And if I get that, I find that it is 10, 20, 30. These are the department in which there is some employee. आप लोग नोट कर सकते हो, ये वैसे एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉई, एक्चुअल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितना है? 10, 20, 30, 40 है, लेकिन 40 ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन इफ इट इज नॉट क्लियर ऑन द फर्स्ट शॉट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मुझको वो सारे डिपार्टमेंट चाहिए विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। मतलब आपको वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके डिपार्टमेंट नंबर आपको यहां पर दिखाई दे, जिनके डिपार्टमेंट नंबर यहां पर दिखाई दे। पहली बार जैसे मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से सोचो। आप लोगों ने जो कुछ भी सोचा होगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग गलत सोचते हो, आप सारे महान लोग हो, तो डेफिनेटली आपने सही सोचा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन जो मैं पहले बता रहा हूं, पहले उसको सुनो, और उसके बाद में आपका कुछ अलग से लॉजिक लगाना है, उसको बाद में सुनना। बहुत बार लोग क्या होता है, वो खुद का लॉजिक लगाने लगते हैं, एंड बाय द टाइम वो खुद के लॉजिक में फंसे रहते हैं, तब तक मैं टॉपिक पढ़ा के खत्म हो जाता है, और फिर वो लोग जग जाते हैं, नहीं सर वो आपने पढ़ाया वो नहीं समझा। सो पहले जो मैं बता रहा हूं, पहले वो समझ लो, उसके बाद में आपको जो लॉजिक लगाना है, यू आर फ्री, यू कैन ऑलवेज राइट योर ओन लॉजिक, आई नो दैट। और मैंने आपको जब पहले बताया था, हर एक क्वेरी लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, भूलना मत। हर एक क्वेरी लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, सो डेफिनेटली इवन योर सेकेंड और थर्ड वे कैन ऑल्सो बी करेक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन पहले जो पहले वे मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले सुन लो। आई एम जस्ट गोइंग अहेड। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉई, ये मेरे को दे रहा है 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इज गिविंग मी 14 डिफरेंट एम्प्लॉइज। अब मुझको क्या करना है? मुझको क्या करना है? मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं, मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। मतलब हैव अ लुक एट दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये मुझको डिपार्टमेंट दिखाने हैं, सो आई एम सेइंग दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर where department number is same as any of these department. A department number is same as any of this department. Is it possible? Absolutely possible. My department number is same as any of these department. प्लीज नोट, ये जो क्वेरी रन हो रही है, ये क्वेरी कितनी बार रन होगी? ये जो आपका सब क्वेरी है, सब क्वेरी कितनी बार रन होगा? आपका सब क्वेरी 4 बार रन होगा। प्लीज विजुअलाइज हाउ द एग्जीक्यूशन विल हैपन। आपका सब क्वेरी 4 बार रन होगा। कैसे 4 बार रन होगा? प्लीज नोट, जब आप लोग पहली बार रन करोगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 10 आएगा। सो डिपार्टमेंट 10 आएगा, सो डिपार्टमेंट 10 will be compared with, a department 10 will be compared with all this department. If it is matching with anyone, matching with anyone, अब यहाँ आपको दिख रहा है ये मैचिंग पहले कोई मैच हो गया, तो वो 10 वाला डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो रहा है। then it is continued further, then it is continued further, we have got second one, the second one, फिर सेकंड वाले के लिए आपका सब क्वेरी फिर से रन हो रहा है, सेकंड वाले के लिए आपका सब क्वेरी फिर से रन हो रहा है। व्हाट विल हैपन? इट इज मैचिंग not with this, not with this, not with this, but yes, it is matching with this 20. If it is matching with any of this, since it is matching, again that is shortlisted and displayed. मेरा सब क्वेरी तीसरी बार रन हो रहा है, थर्ड टाइम, oh it is 30. Now what will happen? It is again comparing with all is this, all of this, all of this, and here you find that yes, 30 is matching. Since it is matching, again 30 is shortlisted, 30 will also be displayed. However, now when you look for the 40, the last one employee, इसका department number है 40, that 40 is again compared with, अरे is it equal to this, equal to this, equal to this, equal to this, equal to this? Oh sorry, it is not equal to any of this, and since it is not equal to any of this, it will not be displayed, it will not be displayed. Please understand this. I hope now it is clear how exactly this flow query is executed. But wait, before you people try it, let me just show you. Don't you think that ये जो output है, that output आपको check क्या करना है? आपको equality check करनी है। तो अगर आपको equality check करनी है, तो हम लोग any से कर सकते हैं। Have a look at this. इसके अलावा ये वैसे भी आपको एक array return कर रहा था। I can also use in operator. ये इन ऑपरेटर का काम होता है एरे के साथ कंपेयर करना, एरे के साथ इक्वालिटी कंपेयर करना। तो डेफिनेटली सेम आउटपुट आई कैन गेट इट यूजिंग दिस एज वेल।
सो चॉइस इज योर्स। अगर आपको इक्वल टू एनी लिखना है आप लोग लिख सकते हो, आपको इक्वल टू एनी लिखना है लिख सकते हो, अगर आपको सिर्फ इन लिखना है तो भी आप लोग लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। इन ऑपरेटर कैसे काम करता है? व्हाट इज द जॉब ऑफ इन ऑपरेटर? इन ऑपरेटर हम लोग किसी ना किसी एरे के साथ यूज करते हैं, राइट? अगर हम लोग इन ऑपरेटर किसी ना किसी एरे के साथ वर्क होता है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? इन ऑपरेटर किसी ना किसी एरे के साथ वर्क होता है, तो यहां पर मेरे को 14 डिपार्टमेंट का एरे मिल रहा है, एंड इफ डीपीटीएनओ इज मैचिंग विथ इन, मतलब क्या? उस एरे में से कहीं पर भी अगर वो है देन इट विल बी डिस्प्लेड। इन ऑपरेटर ये हम लोग नया ऑपरेटर नहीं पढ़ रहे हैं, इन ऑपरेटर हम लोग ने वेयर क्लॉज में पढ़ा था और वो आपको ऑलरेडी आता है, राइट? तो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। तो अब लो सर फिर एनी और इन में डिफरेंस क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट in is used only for checking equality. In is used only for checking equality, while any can be used, आप इक्वालिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेस देन के लिए भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यूज कर सकते हो। यहां पर एनी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, प्लीज नोट। आपने ऊपर यहां पर एनी कहीं पर तो यूज किया है, यहां पर आपने एनी ग्रेटर देन के लिए यूज किया है, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। आप लोग इन का यूज किया है, इनको यूज करके हम लोग सिर्फ इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, इनको यूज करके हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन यूज नहीं कर सकते। एनी ऑपरेटर इज स्पेशली यूज ओनली फॉर द सब क्वेरी। इन ऑपरेटर हम लोग सब क्वेरी में भी यूज कर सकते हैं और विदाउट सब क्वेरी हम लोगों ने इससे पहले भी उसको यूज किया है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चॉइस इज योर्स। तो सर फास्ट कौन सा होगा? आपको क्या लगता है अगर हम लोग एनी और इन की बात करेंगे, इन दोनों में से फास्ट कौन सा होना चाहिए? इन विल बी फास्ट। सी एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न, कॉस्टिंग के ऊपर मत जाना, कॉस्टिंग विल रिमेन सेम, कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एज फार एज स्पीड इज कंसर्न यू विल फाइंड दैट इन इज फास्टर। व्हाई इन इज फास्टर? बिकॉज इन इज स्पेशलिस्ट, उसका स्पेशलिटी है, इक्वालिटी चेक करने में इनका स्पेशलिटी है। सो जो जो स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट हमेशा फास्ट होता है। जो एनी है, एनी क्या है? एनी जनरल पर्पज, वो इक्वालिटी के साथ भी काम करता है, ग्रेटर देन के भी साथ पे काम करता है, लेस देन और इक्वल टू साथ में भी काम करता है। जब कोई जनरलाइज होता है तो उसका स्पीड आप लोग थोड़ा सा कम पकड़ सकते हो। आई रिपीट, कॉस्टिंग मत चेक करना, कॉस्टिंग में दोनों सेम आने वाले। मैं कह रहा हूं एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्पीड में जहां पर आपको इक्वालिटी चेक करना है वहां पर इन विल वर्क फास्टर, इन विल वर्क फास्टर। दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड आउट समथिंग, फाइंड ऑल डिपार्टमेंट विच डजेंट कंटेन, विच डजेंट कंटेन एनी एम्प्लॉय। व्हाई डोंट यू ट्राई इट? चलो ये क्वेरी आपको ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा। गो अहेड, ये क्वेरी तो आप लोग करके देखोगे, ये तो आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे, यहां पर दिमाग आपको लगाना है। आउटपुट में क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए। प्लीज गो अहेड, ट्राई इट योरसेल्फ, करके देखो एंड ट्राई इट विद दो बोथ। अरे एक ही मत दिखाना, ट्राई इट विद बोथ, एनी से भी करना और इन से भी करना, दोनों से करना, करो फटाफट, ट्राई इट विद बोथ। गुड। सो आई गेस देर इज नथिंग डिफिकल्ट इन टू दैट। अगर आपने एनी से किया था वही आपको फिर से एक बार करना है, वही आपको फिर से एक बार करना है। सिर्फ आपको इक्वल टू नहीं चेक करना है, आपको नॉट इक्वल टू चेक करना है, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। अदर देन 10 20 30 आपके डेटाबेस में जो कुछ भी रहेगा। हेलो, हैव यू चेक दैट? हैव यू चेक दैट नॉट इक्वल टू एनी एंड इट इज नॉट वर्किंग? ये सब कुछ दिखा रहा है। यस एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा था। डोंट यूज एनी ओवर हेयर, इट इज नॉट इक्वल टू ऑल ऑफ दिस विल गिव यू द रिजल्ट दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। नाउ प्लीज नोट,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेरी ट्राई नहीं करते, वो सिर्फ मटका मारते हैं और बताते हैं सर वो रिजल्ट आ गया। ऐसे मत करो, नो शॉर्टकट्स प्लीज। करके देखो, पहले रिजल्ट अपनी आंखों से देखो, व्हेन इट इज क्लियर तभी भेजना। ये देखो वेंकटेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वेंकटेश बेटा, मैंने कुछ बताया अभी आपको, करके देखो पहले, क्वेरी जस्ट मुझको मत भेजना। पहले क्वेरी करके देखो एंड देन यू सेंड इट, राइट? ओके। ऑब्वियसली यही चीज हम लोग इन के जगह पे नॉट इन से भी कर सकते थे, एंड ऑब्वियसली नॉट इन विल ऑल्सो बिहेव इन अ सेम वे। Not in will also behave in the same way. That is another way that you can solve the result. Wow. तो हम लोगों ने कुछ तो ढूंढा है and I got the result. ओके। तो सर वो जो नॉट इक्वल टू एनी था, उसमें सारे रिजल्ट क्यों आ रहे थे? मैं क्विकली बताता हूँ, प्लीज पे अटेंशन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक। वो जो मेरा ओरिजिनल ये था, these are all my departments. How this will be executed? एक कौन सा क्वेरी मैं बता रहा हूँ? The query which is not giving you the correct result. Query which is not giving you the correct result. I'm talking about this. अगर मैंने ऐसे लिखा, not equal to any, not equal to any, obviously this is giving me the wrong result. The question is not equal to any काम कैसे करता है? So you start with department number, you fetch the first department number. Your first department number is now compared with all. This is not equal to this, nahi. Not equal to this, nahi. Not equal to this, nahi. And now you find that 10 first department number is not equal to this. And since it is not equal to this, my 10 is shortlisted. My 10 is shortlisted. You continued further. A second one. Who is second one? Let me just select second one. Let's say 20. A 20 के लिए you start comparing. As you started comparing, and you find that 20 is not equal to the first row itself. Since 20 is not equal to the first row itself, again it is not working. Not equal to. Again it is shortlisted. You go ahead. Next row is 30. Now 30 is not equal to any of these. Again you find that 30 is not equal to the first row itself. Again it is going well. And last one, when the 40 is again not equal to any of this, and again it is going as it is. So obviously ये जो आपको not any है, ये आपका सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सबको शॉर्टलिस्ट कर रहा है, and it is giving you the result. I hope it is clear, right? If it is not equal to any of this, जैसे उसको पता चलता है कि it is not equal to any of this, वो immediately वहां से बाहर आ जाता है। वो अभी आप लोग वहां पर देख रहे थे, राइट? चलो, ऑब्वियसली ये रॉन्ग रिजल्ट है। अब ये मत कहना कि रॉन्ग रिजल्ट क्यों आ रहा है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, व्हाट इज रॉन्ग रिजल्ट। ये मैं कहां पर था? फाइंड ऑल डिपार्टमेंट्स विच कंटेन एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। रिद्धि, जब आपका सब क्वेरी मल्टीपल रोज रिटर्न करते हैं, तो आपने या तो ऑल ऑपरेटर यूज करना चाहिए, या तो एनी ऑपरेटर यूज करना चाहिए, या फिर इन ऑपरेटर यूज करना चाहिए। आई होप रिद्धि यू गॉट द पॉइंट, करेक्ट? एंड दैट इज द रीजन इट वाज गिविंग यू एरर। प्लीज चेक दैट मल्टी रो सब क्वेरी के बारे में आपने क्या पढ़ा। ऑब्वियसली प्लीज नोट दैट सब क्वेरी के बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आप लोग ज्वाइन से सॉल्व कर सकते हो। आई रिपीट वन सेकेंड, नॉट ऑल, बट सब क्वेरी के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग ज्वाइन से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अभी हम लोग सब क्वेरी का टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं सब क्वेरी के ऊपर फोकस करूंगा। बाद में आप लोग आर कर सकते हो, राइट? एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया ना, मैं ज्वाइन के बाद में इमीडिएटली मैंने सब क्वेरी क्यों नहीं पढ़ाया, सो दैट यू गेट अ लिटिल टाइम वेयर यू कैन डाइजेस्ट विद जॉइंस। वंस योर जॉइंस आर क्लियर, तब मैं सब क्वेरी पढ़ाना चाहता हूँ। नहीं तो क्या हो जाता है, लोग जॉइंस और सब क्वेरी दोनों का मिक्सचर कर देते हैं और वाट लगा देते हैं, ऐसा यूजुअली होता है। आई एम जस्ट गोइंग अहेड। सब क्वेरी रिटर्न्स मल्टीपल रोज, मल्टी रो सब क्वेरी की बात चल रही है। यूजुअली इट इज कंपेयर्ड इन आउटर क्वेरी using in operator, any operator or all operator.
इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर चेक फॉर इक्वालिटी, इट इज चेक फॉर इक्वालिटी। एनी ऑपरेटर कंपेयर्स, यहां पर मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कंपेयर्स, कंपेयर्स इन द सेंस एनी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। ए रिलेशनल ऑपरेटर मतलब, अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ये मत पूछना, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, अर्लियर स्लाइड में लिखा हुआ था, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, these six are the relational operators. So it compares, not equality, I'm saying that it compares with with any one result, one of the result, and all operator, again it is comparing with all of the results, with all of the results, and it is there. However, मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? फॉर ईच रो ऑफ द आउटर क्वेरी योर इनर क्वेरी was executed. For each row of the outer query your inner query was executed. तो कोई मुझको बताएगा, ये जो एग्जांपल अभी हम लोग ले रहे हैं, इस एग्जांपल में आपके सब क्वेरी कितने बार रन हो रहे थे? इन दिस एग्जांपल हाउ मेनी टाइम्स सब क्वेरीज वेर रनिंग फॉर द करंट डेटा सेट, जो हमारा अभी करंट का डेटा है, उन दैट केस सब क्वेरी आपका कितनी बार रन हो रहा था? मैंने क्या बताया? फॉर ईच रो ऑफ द आउटर इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड वंस, फॉर ईच रो ऑफ द आउटर इनर इज एग्जीक्यूटेड वंस। क्या चल रहा है? आप लोग कुछ भी मटके मार रहे हो क्या? कोई 44 लिख रहा है, कोई 14 इंटू 4 लिख रहा है, कुछ 4 इंटू 14 लिख रहा है, कुछ भी कर रहे हो? व्हाट आई एम सेइंग दैट, प्लीज लिसन, फॉर ईच रो ऑफ द आउटर inner query is executed once. How many rows are there in outer? अरे आउटर में रोज कितने हैं? 4 रोज है आउटर में। अगर आउटर में 4 रोज है तो 4 रोज के लिए ये इनर क्वेरी कितनी बार रन होगी? 4 बार रन होगी। ये 14 इंटू 4 कहां से आ गया? आर यू डूइंग अ कार्टेशियन प्रोडक्ट और व्हाट? हेलो, मैं फिर से बता रहा हूं और मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। ऊपर में आपको क्या बता रहा था? ये जो ऊपर वाले एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, इन दैट एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू दैट दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड 14 टाइम्स। ए व्हाई इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड 14 टाइम्स? क्योंकि ये जो मेरा आउटर क्वेरी था, एम्प्लॉय था, और एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास 14 रोज थे। सो एम्प्लॉय के अंदर 14 रोज थे। फॉर ईच रो ऑफ द आउटर, ईच रो ऑफ द आउटर इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड दोज मेनी टाइम्स। For each row of the outer, inner query will be executed those many times. For each row of the outer, inner query will be executed those many times. अगर मेरे आउटर टेबल के अंदर, आउटर क्वेरी के टेबल के अंदर 14 है, तो यहां पर ये क्वेरी 14 टाइम्स रन होगा। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, यहां पर मेरा जो आउटर क्वेरी है, इसके अंदर 4 रोज है। अगर आउटर के अंदर अगर 4 रोज है, फॉर ईच रो ऑफ द आउटर इनर क्वेरी is going to be executed only once. अगर 4 रोज है तो इनर वाला 4 बार एग्जीक्यूट होगा। इज दैट क्लियर नाउ? मुझको जो अगला टॉपिक बताना है उसके लिए आपको ये समझ में आना जरूरी है। नो ट्रायल एंड एरर्स प्लीज, प्लीज क्लियरली समझ लो, नहीं तो बाद में आगे रड़ा होगा। अब वापस से 4 इंटू 4 क्यों आएगा? फॉर ईच रो ऑफ द आउटर इनर इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, आई सेड। सो आउटर के अंदर क्या है? डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए इनर एक बार रन हो गया। डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए इनर क्वेरी एक बार रन हो गया। डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए इनर क्वेरी एक बार रन हो गया। डिपार्टमेंट नंबर 40 के लिए इनर क्वेरी एक बार रन हुआ। ऑब्वियसली मेरे पास 4 रोज आउटर थे, तो 4 बार इनर क्वेरी रन होता है। इट इज प्रीटी सिंपल। ओके, नाउ इफ इट इज देयर, आई एम गोइंग अहेड, आई एम गोइंग अहेड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, रुको जरा। यही प्रॉब्लम मुझको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। ऊपर मुझको इसने तो क्वेश्चन पूछा था, मैंने जानबूझ के नहीं लिया था, एंड आई होप नाउ आई विल टेक अप द क्वेश्चन। अब जो कह रहा है उसको ठीक से सुनो। नाउ प्लीज पे फुल अटेंशन। आपकी इनर सब क्वेरी, इन दिस केस आपका जो इनर सब क्वेरी है वो कितने रोज रिटर्न कर रहा है? इन दिस केस आपका जो इनर सब क्वेरी है वो कितने रोज रिटर्न कर रहा है?
इन दिस केस आप क्वेश्चन ठीक से सुनो, क्वेश्चन ठीक से सुनो। मैंने मेरा क्वेश्चन बदल दिया है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कितने सब क्वेरीज है, कितने बार रन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी रोज इट इज रिटर्निंग। व्हाई डोंट यू गिव अ क्वेरी एंड यू चेक दैट। ये आपका इनर सब क्वेरी है ना, इनर सब क्वेरी रन करके देखो। इफ यू आर नॉट श्योर प्लीज गो बैक, रन अ क्वेरी एंड चेक हाउ मेनी रोज इट इज रिटर्निंग। अरे हाउ मेनी रोज इट इज रिटर्निंग, आउटपुट दिख रहा है यार सामने। यस इट इज 14 रोज इट इज रिटर्निंग। इफ इट इज रिटर्निंग 14 रोज प्लीज पे अटेंशन। लेक्चर कम से कम आधा घंटा और चलेगा, सो प्लीज पे अटेंशन एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और अगर जाना है तो अभी चले जाओ, बीच बीच में से गायब मत होना, क्योंकि जो टॉपिक बता रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज पे फुल अटेंशन। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जितनी रोज आपका इनर क्वेरी रिटर्न करता है, जितने रोज आपका इनर क्वेरी रिटर्न करता है, उतना प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा टाइम जाता है। लिसन केयरफुली, इनर क्वेरी जितने रोज को प्रोसेस करता है उतना आपका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। इनर क्वेरी जितने रोज प्रोसेस करता है उतना एग्जीक्यूशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि अब जब आप लोग यहां पर इन ऑपरेटर करोगे तो इन ऑपरेटर 14 रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेगा। आप लोग एनी ऑपरेटर यूज करोगे वो भी 14 रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करेगा। एंड फॉरगेट फॉरगेट अबाउट 14 रिकॉर्ड। यहां पर जो कुछ भी रिकॉर्ड अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, अंदर 14 रिकॉर्ड्स आर गेटिंग प्रोसेस फॉर ईच रो ऑफ द आउटर। For each row of the outer, internally 14 are process and then again comparison भी उतने 14 के साथ हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, जब आप लोग सब क्वेरीज यूज करते हो, रिमेंबर दैट आपका इनर क्वेरी जितने कम रोज रिटर्न करेगा उतना आपका सब क्वेरी फास्ट होता है। मैंने क्या बताया? आपका इनर क्वेरी जितने कम रोज रिटर्न करेगा उतना आपका सब क्वेरी फास्ट होता है। फिर से एक बार, आपका इनर क्वेरी जितने कम रोज रिटर्न करता है उतना आपका सब क्वेरी फास्ट होता है। तो कुछ लोग मुझको ऊपर कह रहे थे सर एक काम करो आप, एक काम करो आप, ये जो आपने क्वेरी लिखा है, क्वेरी अच्छा लिखा है, इसको आप लोग डिस्टिंक्ट लगा दो। यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाने का एडवांटेज क्या होगा? यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाने का एडवांटेज क्या होगा? अब ये आपको 14 रिटर्न नहीं करेगा, ये 14 रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ 3 रिटर्न करेगा। आपको पता है ये 14 नहीं है, ये इंटरनली आपको 3 ही रिटर्न करेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि 10 20 30, ये 10 20 30 तीन ही डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर आपके पास है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम ईएमपी। तो अभी पहले 14 रोज रिटर्न कर रहा था, अब ये 3 रोज रिटर्न करेगा। तो सर डू यू वांट टू से दैट इट इज गोइंग टू गेट फास्टर? I would say that it is going to get faster, but not that much fast what you expect. ये फास्ट होगा लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट क्यों नहीं होगा? लिसन केयरफुली, बहुत ज्यादा फास्ट क्यों नहीं होगा? बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं होगा, प्लीज लिसन, बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टिंक्ट निकालने के लिए भी उसको 14 के 14 रोज प्रोसेस करने पड़ते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बता रहा हूं। आप लोग कह रहे हो कि सर इट विल रिटर्न लेस नंबर ऑफ रोज, आई एग्री, इट विल रिटर्न लेस नंबर ऑफ रोज, लेकिन लेस नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए भी उसको पहले ऑल 14 रोज मेमोरी में लोड करने पड़ेंगे, ऑल 14 रोज एक दूसरे के साथ कंपेयर करने पड़ेंगे, कंपेयर करके उसमें से डिस्टिंक्ट निकालने पड़ेंगे, और वो डिस्टिंक्ट निकाले हुए रिटर्न करेगा। तो आप लोग एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा प्रोसेस करके बाद में वो निकालने वाला है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन इससे परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। थियोरेटिकली, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली बढ़ता नहीं है। मैंने क्या कहा? थियोरेटिकली परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता। तो सर कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका ये है, तो डिस्टिंक्ट यूज करके परफॉर्मेंस बढ़ाने के सपने छोड़ दो। मैंने क्या बताया? डिस्टिंक्ट यूज करके परफॉर्मेंस बढ़ाने के सपने छोड़ दो, क्योंकि डिस्टिंक्ट इटसेल्फ विल टेक टाइम। डिस्टिंक्ट तब तक ठीक से वर्क नहीं करता जब तक सारे के सारे रिकॉर्ड उसके हाथ में नहीं आ जाते। तो सर कोई दूसरा तरीका है? यस, दूसरा तरीका ये है, लिसन केयरफुली, दूसरा तरीका ये है, क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ वेयर क्लॉज लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्ट। लिसन केयरफुली, इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्ट क्या मैं यहाँ पर कोई वेयर क्लॉज लगा सकता हूँ? सेइंग डिस्टिंक्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा डिस्टिंक्ट का वैसे कोई यूज नहीं होता।
department number from emp and if I can use some where clause. where clause क्या करता है? where clause सारे रिकॉर्ड मेमोरी में लोड ही नहीं करता. where clause where कंडीशन में जितने अप्लाई हुए हैं उतने ही रिकॉर्ड मेमोरी में लोड करता. वो वेयर क्लॉज वेयर कंडीशन में जितने रिकॉर्ड मेमोरी में लोड करता है, वेयर कंडीशन जितने के लिए ट्रू होता है उतने ही रिकॉर्ड मेमोरी में लोड करता है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड मेमोरी में लोड नहीं करता. करेक्ट. एंड दैट इज रीजन इट कैन बी मोर एफिशिएंट. इट कैन बी मोर एफिशिएंट. लेकिन सर यहां पर मैं वेयर क्लॉज में क्या कंडीशन दूंगा? वही तो मैं बताने जा रहा हूं. लिसन केयरफुली. यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ you people understand how this query is going to execute. Please pay attention how this query is going to execute. For each row of the outer, inner query is executed once. For each row of the outer, inner query is going to be executed once. फिर से एक बार. For each row of the outer, inner query is going to be executed once. मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पर अलाइसिस लगा रहा हूं. ये जो डीपीटी था, ये डीपीटी को मैं कह रहा हूं डी. ये टेबल अलाइस आपके लिए नई बात नहीं है. और एम्प्लॉय को मैं कह रहा हूं ई. एम्प्लॉय को मैं कह रहा हूं ई. ये टेबल एनालिसिस हम लोगों ने अभी ज्वाइन में पढ़े हुए हैं, सो यू ऑलरेडी नो दैट. अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई मुझको बताएगा जब ये पहली बार ये क्वेरी रन हो रही है, जब पहली बार ये इनर क्वेरी रन हो रही है, तब डिपार्टमेंट नंबर कौन सा चल रहा है? जब ये पहली बार क्वेरी रन हो रही है, इनर क्वेरी रन हो रही है, तो आउटर का डिपार्टमेंट नंबर कौन सा चल रहा है? प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव, इट विल हेल्प यू. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यहां पर जो पहली क्वेरी मेरी जब चल रही है, पहली बार जब मेरा इनर क्वेरी चल रहा है, तो आउटर का अभी डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है 10. आउटर का डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है 10. तो मैं क्या कहता हूं, यहां पर मेरे को ऑल 14 लोड नहीं करने. यहां पर मेरे को ऑल 14 लोड नहीं करने. इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल 14, प्लीज पे अटेंशन, वेयर वेयर आई एम सेइंग दैट ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये अंदर का जो डिपार्टमेंट नंबर है, इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. अब कोई मुझको बताएगा इन दिस पर्टिकुलर केस, आपको डेटाबेस पता है 10 नंबर डिपार्टमेंट के 3 रिकॉर्ड्स है, 20 नंबर के 5 रिकॉर्ड्स है और 30 नंबर के 6 रिकॉर्ड्स है. ईएमपी का टेबल हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं. 10 नंबर के 3 है, 20 के 5 है और 30 के 6 रिकॉर्ड्स है. कोई मुझको बताएगा इन दिस केस जब पहली बार सब क्वेरी रन होगा, इनर क्वेरी रन होगा, तो इनर क्वेरी डिपार्टमेंट नंबर 10 चल रहा है, तो कितने रोज फेच करेगा? अब 3 रोज फेच करेगा. और वो कौन से 3 फेच करेगा? 10 10 10. वो 10 10 10 वाले फेच करेगा. ऑब्वियसली ये इसके साथ मैच हो ही जाएगा एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट. ये आपका जो पहला डिपार्टमेंट नंबर 10 है वो प्रिंट हो जाएगा. वो पहला डिपार्टमेंट नंबर 10 है वो फेच हो जाएगा. आई एम जस्ट गोइंग अहेड टू टॉक अबाउट लाइक अ सेकंड वन. द सेकंड वन, प्लीज पे अटेंशन. ए सेकंड वन, प्लीज पे अटेंशन. अब यहां पर क्या होगा, जब आप लोग दूसरी बार आपका इनर क्वेरी रन कर रहे हो, जब आप लोग दूसरी बार आपका इनर क्वेरी रन कर रहे हो, तब डिपार्टमेंट नंबर बाहर वाले का कौन सा चल रहा है? बाहर वाले का डिपार्टमेंट नंबर कौन सा चल रहा है? यस, 20 चल रहा है. जब 20 चल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हेन आई एम अप्लाइंग द वेयर क्लॉज, व्हेन आई एम अप्लाइंग द वेयर क्लॉज, व्हाट विल हैपन? यहां पर अगर मैं वेयर क्लॉज अप्लाई कर रहा हूं तो कितने रोज आएंगे? अब 14 रोज नहीं आएंगे, यहां पर सिर्फ 5 रोज आएंगे. यहां पर 14 रोज नहीं आएंगे, 20 डिपार्टमेंट वाले सिर्फ 5 रोज है, 5 रोज आएंगे. एंड देन आई कैन से दैट वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और वो ऑब्वियसली मैच होने वाला है, वो 20 वाले ही 5 होने वाला है, तो डेफिनेटली ये मैच होने ही वाला है एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट. वेट फॉर अ मिनट, मैं फिर से एक बार आगे जाता हूं. अब मेरा थर्ड रो, थर्ड रो डिपार्टमेंट के अंदर का थर्ड रो कौन सा है? 30 मतलब सेल्स वाला है. 30 सेल्स का रो है. इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो मेरा इनर क्वेरी है वो क्या रिटर्न करेगा? हाउ मेनी रोज इट विल रिटर्न? ये 30 वाले मेरे पास 6 रोज है, वो सारे के सारे 30 रहने वाले हैं. यू डोंट वरी अबाउट, वो सारे के सारे 30 रहने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाई अगेन इट विल मैच, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड यू विल अगेन, दैट विल आल्सो गेट शॉर्टलिस्टेड, दैट विल आल्सो गेट प्रिंटेड. वेट फॉर अ मिनट. अब आपका चौथा रो, जब ये क्वेरी चौथी बार होगी, तब एट दैट टाइम आउटर का कौन सा डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है? आउटर का
कौन सा डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है? आउटर का डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है 40. अगर आउटर का डिपार्टमेंट नंबर चल रहा है 40, हैव अ लुक एट दिस. नाउ व्हाट विल हैपन? अरे नाउ व्हाट विल हैपन? हाउ मेनी रोज विल बी रिटर्न बाय द इनर क्वेरी? अब आपका इनर क्वेरी कितने रिटर्न रोज रिटर्न करेगा? एब्सोल्युटली इट विल रिटर्न यू द जीरो रोज. एब्सोल्युटली इट विल रिटर्न यू द जीरो रोज. एंड सिंस इट विल रिटर्न यू द जीरो रोज, यहां पर आपके इन के अंदर वो मैच नहीं होने वाला. अरे इन के अंदर 40 इन अगर अंदर जीरो है तो वो मैच नहीं होने वाला. एंड यू विल फाइंड दैट दिस विल also give me the same result. This will also give me the same result. And again I'm saying that this is bit more efficient than the earlier one. दिस इज बिट मोर. मैं ये नहीं कह रहा हूं दिस इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. दिस इज आई एम सेइंग दैट बिट मोर एफिशिएंट, क्योंकि डिस्टिंक्ट निकालने के लिए आपको सबके साथ कंपेयर करना पड़ता है. अभी यहां पर ये थोड़ा सा बेटर है, बट स्टिल एज रिद्धि पॉइंटेड आउट अर्लियर कि सर उसके लिए भी उसको सारे एम्प्लॉयज के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा. यस आई नो, अभी भी उसको सारे एम्प्लॉयज के लिए जाना पड़ेगा. दैट आई नो दैट, बट दिस इज डेफिनेटली फास्टर देन द अर्लियर वन. वेट फॉर अ मिनट, आई एम गोइंग फॉर द लास्ट वन. मैं यही क्वेरी फिर से एक बार लिख रहा हूं, वापिस से रिजल्ट वही आने वाला, वापिस से रिजल्ट वही आने वाला. आई एम जस्ट गोइंग अहेड. नाउ लिसन केयरफुली. अब जो वापस से बता रहा हूं प्लीज पे अटेंशन. मैं वापस से टॉपिक वही लेने वाला हूं, कंसेप्ट भी वही बताने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग स्पेशल. अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यू फाइंड दैट इसके अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, ये डिपार्टमेंट नंबर मैं कंपेयर कर रहा हूं ऑल द डिपार्टमेंट नंबर्स. ये डिपार्टमेंट नंबर में कंपेयर कर रहा हूं ऑल द डिपार्टमेंट नंबर्स. और यहां पर मेरे को कितने डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं? ऑन अ फर्स्ट इटरेशन आई एम गेटिंग 3 डिपार्टमेंट नंबर्स. On a second iteration, I'm getting 5 department number. On a third iteration, I'm getting 6 department number. And a fourth iteration, I'm getting 0 department number. I'm getting 0 department number. लेकिन एक बात बताओ, ये जो पहले इटरेशन में जो 3 डिपार्टमेंट आने वाले थे, वो तीनों के तीनों 10 ही होने वाले थे. ऑब्वियसली 10 होने वाले थे, क्योंकि अपने वेयर क्लॉज ही वैसा लगाया हुआ है. नहीं, डिस्टिंक्ट की जरूरत नहीं. एक मिनट, डिस्टिंक्ट के पीछे मत जाओ, डू नॉट मिक्स अप. यहाँ पर जो 3 आने वाले थे वो 10 ही आने वाले थे. वो 10 ही क्यों आने वाले थे? आपने वेयर क्लॉज ही लगाया है, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. और अभी आपका डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर 10 चल रहा है. सेकेंड इटरेशन में डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर 20 चल रहा है. तो जो पांचों आने वाले थे आपके वेयर क्लॉज के कारण, वो पांचों के पांचों 20 वाले ही आने वाले थे. यहां पर जो थर्ड इटरेशन में वो 6 के 6 30 वाले ही आने वाले थे. और जो लास्ट इटरेशन चलेगा, यहां पर 0 आने वाले थे. और जीरो जीरो क्यों आने वाले? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 40 वाला कोई है ही नहीं आपके पास. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज देयर इज एनी रियली पॉइंट, लिसन केयरफुली, इज देयर एनी रियली पॉइंट इन कंपेयरिंग दिस? इस कंपैरिजन का कोई मतलब है क्या? अभी इस कंपैरिजन का कोई मतलब है क्या? वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन विद दिस, इस कंपैरिजन का कोई भी मतलब है? क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा, तब यहां पर 10 ही आने वाले हैं ना सारे. जितने आएंगे वो 10 ही वाले होने वाले हैं. जो डिपार्टमेंट नंबर जब यहां पर 20 होगा, तो जितने फेच हो रहे हैं वो 20 वाले ही फेच हो रहे हैं. जब हम लोग यहाँ पर 30 आएगा तो सारे 30 वाले ही हो रहे हैं. तो यहाँ पर कंपैरिजन की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? लिसन केयरफुली. पहले वाले केस में, पहले वाले केस में मुझको कुछ तो आ रहा है, 3 मतलब कुछ तो आ रहा है. दूसरे वाले केस में 5 मतलब कुछ तो आ रहा है. तीसरे वाले केस में 6 मतलब कुछ तो आ रहा है. लास्ट वाले केस में 0 मतलब कुछ नहीं आ रहा है. आर यू विजुअलाइजिंग? सी क्वेरी इज वेरी इजी. मेरे को सिर्फ एक कीवर्ड इधर से उधर करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट? मुझको सिर्फ यहां पर क्या चेक करना है? वो डिपार्टमेंट नंबर का कंपैरिजन चेक करने का कोई मतलब नहीं है. मुझको सिर्फ, अगर मैं क्वेरी ये वाली लिख रहा हूं, तो मुझको सिर्फ उसके अंदर जीरो है या नॉन जीरो है, इतना चेक भी मेरे लिए काफी है. वो जीरो है या नॉन जीरो है, इतना चेक भी मेरे लिए काफी है. सर वो चेक मैं कैसे कर सकता हूं? डेफिनेटली मैं काउंट से भी चेक कर सकता हूं, बट अदर देन काउंट देयर इज अ स्पेशल ऑपरेटर. अदर देन काउंट देयर इज अ स्पेशल ऑपरेटर. प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. मैं कह रहा हूं डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग कंपैरिजन.
Don't waste your time in doing comparison. Just use the operator exist. Khatam. Just use the operator exist. And what that exist operator does, exist operator simply check कि अंदर वाला क्वेरी कुछ रिटर्न कर रहा है क्या. अगेन क्या रिटर्न कर रहा है वो नहीं चेक कर रहा है, कुछ भी रिटर्न कर रहा है क्या. इज इट रिटर्निंग 1 row, 2 row, और इज इट रिटर्निंग 0 rows. If it is returning anything greater than 0, if it is returning anything greater than 0, it will simply shortlist this and it will again give me the same result. It will again give me the same result, and I'm saying that this is much more faster than the earlier query. अब जैसे आप कुछ भी बोलते रहते हो, नहीं मैं क्यों कुछ भी बोलूं. Why don't you check the performance once? Explain format is equal to JSON. Explain format is equal to JSON, and when you are written like this, oh, I get some query and the speed is 3.52. Okay, no problem. 3.52. I'm just going ahead and I'm trying to check it with this and exist क्योंकि यहां पर मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं. 3.52. This is still giving 3.52. This is not fair. Look like यहां पर कहीं पर तो कोई तो इंडेक्स इन्वॉल्व है, यहां पर कुछ तो इंडेक्स इन्वॉल्व है या कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमाइजर इन्वॉल्व है. डोंट वरी, एक काम करो, आप लोग ये क्वेरीज ट्राई करो, तब तक मैं उसके ऑप्टिमाइजर के साथ छेड़छाड़ करता हूं. आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग इसको ट्राई करो, तब तक मैं उसके ऑप्टिमाइजर के साथ छेड़छाड़ करता हूं. जस्ट डोंट ट्राई दैट एक्सप्लेन फॉर्मेट इज इक्वल टू. इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे. एग्जिस्ट का क्वेरी चेक कर लो. एग्जिस्ट के क्वेरी में आपको इन नहीं लगाना है, एग्जिस्ट के क्वेरी में आपको इफ नहीं लगाना है. प्लीज नोट, एग्जिस्ट का क्वेरी और वो एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं है. स्पेलिंग चेक करो. प्लीज चेक एट योर एंड, तब तक मैं कुछ तो ट्रायल एंड एरर करता हूं उसके साथ. गिव मी 2 मिनट्स. आप लोग तब तक आप जितना मैंने आपको बोला है उतना ट्राई करो. जो इसका सिंटैक्स है वो मैं देखता हूं. इफ एग्जिस्ट नाम का कोई सिंटैक्स नहीं है, सो देयर इज नो डिफरेंस.
All is well. Let me check what is the performance. Performance is still 3.52. Okay, actually 3.52 नहीं आना चाहिए था. And now the performance is still 3.52. Don't know what exactly went wrong with this. Unfortunately, settings I'm not able to do that. Sorry. Look like this is missed somewhere, and I forgot the settings to be tried with that. अभी ये चाहे जो भी हो, it is giving me the same one. इसीलिए just to deal with this, इसीलिए मैंने वो पहली लाइन के ऊपर एक वर्ड डाला था, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑप्टिमाइजर स्विच के अंदर का सेटिंग क्या है. सो ऑप्टिमाइजर स्विच हैज गॉट मेनी डिफरेंट सेटिंग्स and few important settings were subquery materialization, second query somewhere like a materializations query. इसके अलावा जो जो ज्वाइंस होते हैं, यहाँ पर कुछ तो एक सेमी ज्वाइन नाम का एक सेटिंग है, दैट इज टू बी मेड ऑफ. देयर इज समथिंग लाइक ब्लॉक नेस्टेड लूप का एक सेटिंग होता है, दैट इज टू बी मेड ऑफ. तो सर ये जो सारे सेटिंग्स हैं, ये जो सारे ज्वाइंस के सेटिंग है, ये जो सारे ऑप्टिमाइजेशन के सेटिंग्स है, ये क्या है? दिस विल चेंज फ्रॉम आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस. फॉरगेट, दिस विल चेंज फ्रॉम वर्जन टू वर्जन. ये आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस भी चेंज करते हैं, ये वर्जन टू वर्जन भी चेंज करते हैं. चलो धनश्री के यहाँ पर कुछ तो चेंज हुआ है. सो धनश्री के केस में वहां पर चेंज हो गया है 4.27 एंड 2.75. हाँ, यस, इट लुक लाइक आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर वर्क हो रहा है. कुछ लोगों को सेम आएगा, कुछ लोगों को अलग अलग आएगा. स्पेशली शायद जो लोग लिनक्स के ऊपर है, दे आर गेटिंग मे बी अ बेटर आंसर. और इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके यहाँ के सेटिंग्स क्या है. अब वो एक्चुअली मुझको याद नहीं रहा. आई शुड हैव चेक्ड इट, आई शुड हैव चेक्ड इट अर्लियर कि यहाँ पर कौन कौन से सेटिंग्स ऑफ करके देखने चाहिए ऑन अ विंडोज मशीन. यूजुअली हम लोग विंडोज पे पढ़ाते नहीं है, हम लोग लिनक्स के ऊपर पढ़ाते हैं. तो आई जस्ट फॉरगॉट दैट विच ऑल सेटिंग्स टू बी डन. बट आइडियली, रुको जरा, मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स ऑन द सेटिंग्स. आइडियली दिस दिस विल बी परफॉर्मिंग बेटर as compared to this query will be performing better as compared to this query depending on appropriate optimizer switches. डिपेंडिंग ऑन अप्रोप्रिएट ऑप्टिमाइजर स्विचेस. अब जिन लोगों को ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हम लोगों को शायद उनके ऑप्टिमाइजर वेरिएबल के ऑप्टिमाइजर स्विच का जो वेरिएबल है उसका कॉपी लेना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा एक एक कंपेयर करके देखना चाहिए. दैट वर्क्स. ऋषिकेश, यस, पॉसिबिलिटी इज दैट. इवन आई विल फाइंड आउट इट. बाद में मैं करके दिखाता हूँ. बाद में मैं एक काम करता हूँ, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आई विल ट्राई इट आउट ऑल ऑप्टिमाइजर स्विचेस. वो ऑप्टिमाइजर स्विचेस के अंदर जो सेटिंग्स है वो मैं चेंज करता हूँ और बाद में आपको मॉडिफाइड बताता हूँ. बट इवन दो आई होप, फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल कॉस्ट. मैंने आपको जो कंसेप्चुअली बताया वो आपको समझ में आया है क्या? लिसन केयरफुली, जो मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया वो आपको समझ में आया क्या? कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर इन, यहाँ पर हम लोग हर एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर एग्जिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंपेयर वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक एग्जिस्ट है क्या? अगर कोई भी एक एग्जिस्ट है, देन एंड ओनली टेक दैट एंड जस्ट कंटिन्यू फर्दर, नथिंग एल्स टू बी डन. यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं? लिसन केयरफुली, जो कंसेप्ट है, वेदर यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वेरी, वेदर यू टॉक अबाउट थर्ड क्वेरी, ये दोनों क्वेरीज में हम लोग कुछ कर रहे हैं. लिसन केयरफुली, इस क्वेरी में इनर क्वेरी के अंदर से, इनर क्वेरी के अंदर से कम रोज रिटर्न करने के लिए हम लोग आउटर क्वेरी का जो करंट रो है, आउटर क्वेरी का जो करंट रो है वो हम लोग यहां पर रेफर कर रहे हैं. सो माय इनर क्वेरी इज रेफरिंग टू द आउटर क्वेरी. यहां पर मेरा जो इनर क्वेरी है, inner query is referring to the outer query, and since my inner query is referring to the outer query, this concept is called as correlated subqueries. These queries are called as correlated subqueries. What is correlated subquery?
where inner query is dependent on the current row of the outer query. और ये सब कुछ क्यों किया जाता है? सो दैट इनर क्वेरी के अंदर से कम रोज रिटर्न हो। और इनर क्वेरी से हमको कम रोज क्यों रिटर्न करने हैं? क्योंकि इनर क्वेरी से हम लोग जितने कम रोज रिटर्न करेंगे उतना हमारा क्वेरी ज्यादा एफिशिएंट होता है, उतना हमारा क्वेरीज ज्यादा एफिशिएंट होता है। दिस इज बेसिकली आइडिया। यस, यू कैन से लाइक दैट, यू कैन से लाइक दैट। हम लोग कहां पर थे? जस्ट रीड दिस। What is correlated subquery? Correlated subquery, if number of results from subquery are reduced, query performance will increase. Number one, going ahead, this can be done by adding criteria where clause in subquery based on outer query row, right? And then typically correlated subquery use in operator, all operator, any operator, or even exist operator is like very common. और जो exist operator है, please note that does not, doesn't compare inner query result, inner query result with with outer query, with outer query or outer row. It only checks, it only checks if inner query, inner query is returning any row, is returning any row. That's it, nothing else. It any row in the sense count, उसका count check कर रहा है कि count is greater than 0. That is the only thing that it is doing. चलो क्विकली एक लास्ट क्वेरी लिखो और हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्वेरी क्या लिखना है आपको? मुझको वो सारे एम्प्लॉयज दिखाने हैं, सॉरी मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं जिनके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। मुझको वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं जिनके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। कैन यू प्लीज क्विकली फाइंड आउट यूजिंग एग्जिस्ट, यूजिंग एग्जिस्ट, यूजिंग एग्जिस्ट, बस बाकी सब कुछ नहीं ट्रायल करना है। मुझको वो सारे एम्प्लॉयज दिखाने हैं, मुझको वो सारे एम्प्लॉयज दिखाने हैं जो क्या होते हैं, जिसके सॉरी वो सारे डिपार्टमेंट दिखाने हैं जिनके अंदर एक भी एम्प्लॉय नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग लाइक को नॉट लगे, नॉट लाइक लगाते हो, इनको नॉट इन लगाते हो, वैसे एग्जिस्ट को आपको नॉट एग्जिस्ट लगाना है। दैट्स इट। सो मुझको आपको ये बताना है, जैसे आपके पास एग्जिस्ट ऑपरेटर है उसका रिवर्स आपके पास नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर भी है। जैसे आपके पास एग्जिस्ट ऑपरेटर है वैसे आपके पास नॉट एग्जिस्ट ऑपरेटर भी है, विच जस्ट चेक द रिवर्स वन, which check just check the reverse one. That's it. And this is what correlated subqueries are. तो हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे थे, subqueries. There are three types of subqueries: single row subquery, second one multi row subquery, and third one correlated subquery. Correlated subquery is bit specialized one, जहां पर आपको स्पीड अप करना है। और स्पीड अप करने के लिए हमें क्या करना है? स्पीड अप करने के लिए इनर क्वेरी से कम रोज निकालने हैं। तो टिपिकली इनर क्वेरी के अंदर आपको वेयर क्लॉज लगाना है जो आपके आउटर रो के ऊपर डिपेंड करे। ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, हार्डली 3 लाइंस आर देयर, बट दोज आर एक्चुअली समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसका कॉस्टिंग भी ये वर्क होता है, डोंट वरी। थोड़ी देर के बाद में जब मैं डेटा अपलोड करूंगा तो आप लोग यहाँ के ऑप्टिमाइजर स्विचेस देख लेना और वो ऑप्टिमाइजर स्विचेस अप्लाई कर लेना। आई एम वेरी श्योर यू विल ऑल्सो, यू विल बी एबल टू सी डिफरेंस। जहां तक मुझको याद है जो मैंने डिफरेंस देखा था, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इन लोगों का वैसे भी डिफरेंस थोड़ा सा कम आ रहा है। आई हैव सीन लिटरली द डिफरेंस, एक में कुछ तो लिटरली 1 से भी कम आ रहा था और दूसरे में 3 से ज्यादा आ रहा था। सो लाइक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैन बी इवन सीन। I just don't recall the optimizer switches. I will check that. I will add it over there, and I will not entertain any question on optimizer switches, especially in the lecture, because optimizer switches are very much dependent on a knowledge of data structure that is used by MySQL people. जो ऑप्टिमाइजेशन स्विचेस सर, वो सेमी जॉइन स्विच अंदर क्या करता है, या फिर ब्लॉक नेस्टेड स्विच इंटरनली क्या करता है, या फिर वो मटेरियलाइजेशन स्विच इंटरनली क्या करता है। सर आप कौन कौन से स्विचेस को ऑफ कर रहे हो, कौन कौन से स्विचेस को ऑन क्यों कर रहे हो, सर उस स्विच के पीछे का लॉजिक क्या है। ये लॉजिक आपके डेटाबेस इंजन जिन्होंने डेटाबेस बनाया है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो दैट्स इट।
This is what all I want to explain you about subqueries. I believe that we have completed with the subqueries. There will be definitely assignment on subqueries which you want to solve, and better you try it tomorrow itself so that आपको एक दो दिन मिल जाएंगे where you can make yourself comfortable with the subqueries. Next lecture, हाँ next lecture you are waiting for. अगले लेक्चर में हम लोग व्यूज पढ़ेंगे. अगले लेक्चर में हम लोग व्यूज के साथ साथ हम लोग ग्रैंड रिवोक पढ़ेंगे. सो नो पहले दिन से लोग पूछ रहे थे हमको ग्रैंड रिवोक पढ़ना है. डोंट वरी, हम लोग ग्रैंड रिवोक पढ़ेंगे, हम लोग व्यूज पढ़ेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है. सो जो जो रिलेवेंट टॉपिक है वहां पर वी विल ट्राई टू टेक अप एंड दैट्स इट. इतना करने के बाद में हमारा सिक्वल खत्म हो जाता. सिक्वल खत्म हो जाता है, मैंने पूरा मॉड्यूल नहीं कहा, सिक्वल खत्म हो जाता है. उसके बाद में वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन पीएल एसक्यूएल फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, राइट. सो आई जस्ट गिवन यू आइडिया. आज के लिए इतना काफी है. वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर. You have any queries, then you can wait. People who do not have any queries, they can leave. Bye bye. See you.